जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, श्री गंगा यमुना माई की, श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembly God. All glories to the Assembly God. All glories to the Assembly God. All glories, all glories, all glories. Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya. Namo Vishnupadaya. Krishna Prishtaya Bhutale. Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta. Srimate Bhakti Vedanta. Swami Iti Namine. Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi. Namaste Saraswate Devi. Namaste Saraswati Devi. Namaste Saraswate Devi. Gauravani Pracharine. Gauravani Pracharine. Nirvishesha Sunyavadi. Vishesha Sunyavadi. Pasyayata Dishatarine. Pasyatya Deshatarine. Namo Mahabadanyaya. Namo Mahabadanyaya. Krishna Prema Padayati. Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Chaitanya. Gauratuse Namaha. Namine Gauratise Namah. Namo Mahabadanyaya. Namo Mahabadanyaya. Krishna Prema Padayati. Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha. Gauratise Namah. Namo Brahmana Devaya. Brahmanya Devaya. Gauramana Hitaya Cha. Jagat Hitaya Krishnaya. Hidaya Krishnaya. Govindaya Namo Namah. Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu. He Krishna Karuna Sindhu. Dinabandhu Jagatpati. Dinabandhu Jagatpati. Gopeshu Gopika Kanta. Kesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi. Tapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. Vrindavaneshwari. Vrishabhanusute Devi. Vrishabhanusute Devi. Pranamami Hari Priye. Pranamami Hari. Vansha Kalpatarubhyascha. Vancha Kalpatarubhyascha. Kripa Sindhu Ivacha. Kripa Sindhu Evacha. Patitanam Pavanebhyo. Patitanam Pavanebhyo. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar. Advaita Gadadhar. Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. मेरे प्रभु भाई लोग, खैर आप लोग को मालूम नहीं, हाथ ऐसा नहीं करना, हम किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं। महाप्रभु हाथ कैसा है? ऐसा ऐसा रखिए, ऐसा में श्राप हम किसी को नहीं दे रहे हैं। हम क्या है, उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये शरणागत है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करना आप लोग को, मैं वाला हाथ सीधा रखो। बताना पड़ता है, अगर हम लोग नहीं बताएं तो कौन बताएगा। बहुत कम लोग हैं अभी गिने चुने गुरु भाई लोग। तो आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल से रथ यात्रा हुआ, आज भी प्रोग्राम है पंडाल में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती विर्भाव तिथि है। असद राधा श्यारी कृपा जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सीताराम गौरीताई। तो क्या सुनना चाहते हो गुरुजी के बारे में? श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, जगन्नाथ, सीताराम या बम्बई के बारे में? यहाँ बताइए, जिज्ञासा। जय हो, महाराज का आदेश हो गया। भक्ति सिद्धांत जो यथाशक्ति मालूम है, मालूम बताता हूँ, ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज की। तो साथ साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बोलने के पहले कुछ शब्द जो है मैं अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से इनका संपर्क में थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। गंगा महासागर में जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले तो सबसे पीछे बैठे थे। भरी सभा, जैसा यहाँ भरा है नैमिषारण्य के बराबर, वहाँ तो बहुत लाखों लोग सबसे पीछे बैठे थे। क्लास जब खत्म हुआ सब धीरे धीरे जाने लगे तो प्रभुपाद देख रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लड़का पीछे बैठा है। अब प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब वहाँ गए, प्रणाम की, दंडवत प्रणाम की। ओ क्या नाम है तुम्हारा? अभय चरण। तो तुमको मैं कुछ सेवा देना चाहता हूँ। मुझे बोला हाँ, क्या सेवा दोगे? भागवत को जो है संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो और पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। बोला मैं अभी स्टूडेंट हूँ गुरु महाराज, पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कॉलेज वो ठीक है, लेकिन और एक बात है, मेरा और कुछ इच्छा है। बोला क्या है? मैं गृहस्थी जीवन में जाना चाहता हूँ। और ठीक है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा मुझे मंजूर है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने दयालु, प्रभुपाद को बोले ठीक। तो इसी प्रकार वार्तालाप चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है बहुत प्रचंड विद्वान। जब इनका जन्म हुआ तो ये यज्ञों पवित्र चिन्ह था। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज बताते थे यहाँ पर 5वां मंजिला में जनेऊ का चिन्ह था उनके। बड़े पक्के वैष्णव, बड़े विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जहाँ बैठे रहते हैं बरामदा में घर के बाहर, तो वहाँ पंडित लोग जो रास्ता में नहीं जाते थे, घूम के जाते थे दूसरे रास्ता में, कुछ बुला के पूछे ना। हाँ, ऐसे डर था ब्राह्मणों को। तो भक्ति सिद्धांत और उनके पिताजी जो है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उस समय जगन्नाथपुरी के मजिस्ट्रेट कलेक्टर थे, और कलेक्टर के अधीन में जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर चलता था। तो रथ यात्रा के दिन जब रथ से निकले और माने भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रुके वहाँ पूजा के लिए, और ये आम का सीजन था, तोताफली आम बहुत बिकता है उस समय रथ यात्रा के समय। तो एक टोकनी आम लेके आए थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो छोटे बच्चे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और 2-4 आम को ऐसा पकड़ लिए जैसा माता एक फल बेचने वाली नंदगांव में वहाँ जब गई थे तो कृष्ण भी आए, थोड़ा सा दोना में मुट्ठी में चावल लेके, और वो सब फल वो डालते गया, ऐसा सब फल टोकरी का खत्म हो गया। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है और दो आम और आम ऐसा लेकर के, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले ये आम अभी तुम्हारा नहीं है, जगन्नाथ को भोग लगेगा।
ये आम अभी जगन्नाथ को भोग लगेगा, बाद में तुम्हारा है। हो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जगन्नाथ का चीज़ मैंने अपने लिए स्वीकार कर रहा हूँ। और संकल्प ले लिए है, छोटा बच्चा वो आम भोग लगाए खाने के लिए दिए तो बोला मैंने मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं गलती किया है, जगन्नाथ का चीज़ को मैं अपना समझा, आम नहीं खाए। दूसरे साल रथ यात्रा हुआ, फिर आम लाए दिए तो आम खाए नहीं, कभी आम उन्होंने खाए। तो हम लोग यहाँ गुरु महाराज बताए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऐसा अवसर में, तो आप पके आम नहीं दे भोग लगाना, कच्चा आम का आप चटनी बना सकते हो, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये बताए। तो आज जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्मदिन है, अवतार दिन है। और नवद्वीप में और एक प्रभुपाद बताए थे, ये भी याद आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर और वहाँ के पंडितों का बैठक था डिस्कस करने का ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में, ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में। तो वहाँ रखा गया था प्रोग्राम, सब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। अब भक्ति विनोद ठाकुर जो है बुखार फीवर हो गया उनको, कई दिन से बीमार चल रहा था। और कल सुबह जाना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मिले शाम को, पिताजी कैसा होगा, ये तो डर से नहीं आया है, यहाँ के ब्राह्मण ऐसे बोलेंगे, तो आपका अगर आदेश हो तो मैं जाऊँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते मैं जाऊँ, अच्छा तो क्या बोलोगे जाके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तैयारी करके रखे थे, मतलब ऐसे ऐसे बात करो, बोला ठीक है जाओ। बड़े खुश हो गए भक्ति सिद्धांत। तो देखो गुरु शिष्य, बाप बेटा गुरु शिष्य, तो गुरु कहीं कहीं बोलते बोलते मिस्टेक शब्द भूल जा रहा है, तो शिष्य इतने बुद्धिमान इतने विद्वान होते हैं, फट से आगे बोल देते हैं। ये कई बार मैं देखा है यहाँ हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई नारायण महाराज यहाँ क्लास ऑडिटोरियम में देते थे, चैतन्य चैतन्यमित का रखा गया एक साल। तो शिष्य कभी कुछ वर्ड को थोड़ा गड़बड़ा जाते थे, तो एक सन्यासी जो पहले तैयार रहता था बोल देता था। तो इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूरा परफेक्ट पहले से तैयार। तो जब गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती सभा में, तो बैठक बैठे हुए थे सब, ऐसी भरी सभा, तो अरे ये तो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, इसका उनका बेटा आ रहा है। कोई बात नहीं, वहाँ जाके प्रणाम के, नमस्कार पंडित लोग ब्राह्मण लोग, पिताजी बीमार हैं तो वो आ नहीं पाए तो मैं आया हूँ, तो आपके आदेश हो तो मैं बैठूँ कुछ शब्द बताऊँ। हाँ ठीक है, बैठिए, आसन आइए आप कहिए, बैठिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो पहले में आप लोग ब्राह्मण आते हो, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, तो ब्राह्मणों का इतना बड़ाई किए, इतना बड़ाई किए, ब्राह्मण तो यार ये तो विपरीत है, इतने खुश हो गए पूछो मत, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। जितना प्रसन्न हो गए उनको चढ़ा दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। फिर शास्त्रों का ब्राह्मण और वैष्णव के बात में चर्चा करने लगे। अब ऐसे दबा दिए उनको भागना भी नहीं पड़ रहा है, उठना नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है बहुत पावरफुल। आज उनका आविर्भाव तिथि है। तो ऐसे गुरुजन हमारे आचार्य हैं, उनके हम संप्रदाय में हैं, तो हमें ये स्मरण होना चाहिए, आज के दिन में ऐसे ही संकल्प करना चाहिए है। ये हमें ये नहीं सोचिए हम कमी हैं, सब हम पूर्ण हैं, पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल भगवान है, हम सब अपूर्ण हैं। लेकिन अपूर्ण होने भी पूर्ण के साथ जोड़े रहने से पूर्ण का बहुत सारे शक्ति मिलती है, ये बात है। तो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु महाराज आज आविर्भाव तिथि ये है। तो ये मैंने गुरु महाराज से यहीं 5वां जिले में कभी कभी सेवा करता था, तो कभी कभी ऐसे अवसर से ये बातें आती थी। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के यहाँ पर जैसा कि हर बुधवार को प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, हम लोग लेक्चर सुनते हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती
एकादशी के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ही गुणगान सुनाते थे। ये प्रभुपाद विभूति ऑफिस है, तो ये हमें ये पालन हम लोग करते करते आ रहे हैं। शिला प्रभुपाद जो है, ये जो देख रहे हो भवन राधा रास बिहारी का, ये बहुत बहुत परिश्रम, ये हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं, ये लोग पुराने बहुत है, सब मूवी बना हुआ है प्रभु जी का बनाया हुआ। तो यहाँ रथ यात्रा में जैसे प्रभुपाद ने देखो, कल भी एक शब्द बताया था तो उसको दोबारा बता रहा हूँ। छोटे बच्चे थे उस समय, गौर मोहन ने रथ बना करके यात्रा बच्चों को खिलाते थे। तो अमेरिका जब गए तो सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ अमेरिका में फ्री स्टोर होता है, जैसे इंडिया में भी है, पुराने माल बिक्री करना, पुराना सस्ता में, बहुत सस्ता में। तो वहाँ उसको अमेरिका में बोलता है फ्री स्टोर। तो वहाँ भी पुराने सब चीज़ें मिलते हैं। तो मालती माता जी ने गई कुछ सामान खरीदने के लिए, प्रभुपाद भी कुछ पैसा दिए थे, अपने लिए कुछ सामान मंगाए। तो मालती माता जी गई तो वहाँ देखे जगन्नाथ के छोटे छोटे बड़े, तो जगन्नाथ चौका या नो चौका बड़े सुंदर आकर्षक, वो ले ली, जगन्नाथ को पहला ले रखी। प्रभुपाद के लिए भी सामान ली, अपने भी सामान खरीदी। प्रभुपाद बैठे थे अपने रूम में, आश्रम में, ऐसा सामने तख्ता, ऐसा टेबल था, उसी में बैठे थे। तो आई प्रभुपाद के सामान देने के लिए। तो पहले जगन्नाथ ऊपर में, थैले के ऊपर में था, तो जगन्नाथ को नीचे टेबल में रखी। तो प्रभुपाद तुरंत उठ गए हड़बड़ी करके, एकदम दंडवत प्रणाम किए। माता जी आश्चर्य हो गई, क्या हो रहा है? माता जी आश्चर्य हो गई, बोला यू नो मदर, ये अदर टू स्टेचू देयर, दो मूर्तियां और है क्या, एक पीला कलर में, एक वाइट कमल के बराबर आंख, लोटस फ्लावर के बराबर। ओ यस, गो ब्रिंग दिया। वो गई लेने, यहाँ पर टेबल को पोंछ करके साफ करके जगन्नाथ का प्रेयर कर शिला प्रभुपाद। माता जी लेके आई जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, तीनों हो गए, दो और लेके आई, रख दिए। तो तुरंत जो है प्रेयर किए, सब भक्तों को बुलाए। हमारे गुरु भाई एक थे, अभी नहीं रहे, जयानंद प्रभु, जयानंद प्रभु को बुलाए। अब प्रभुपाद ड्राइंग बना दिए, ऐसा कार्ड बनाना है, माने रथ पेंसिल बना दिए, और ऐसा बनाया गया। अब वहाँ रथ यात्रा की। कहाँ पर? ये भी तमाल कृष्ण महाराज यहाँ बताते थे, जब यहाँ जेपीसी थे 1978 में। तो हम लोग सब हिपी थे, महाराज बोलते हैं हम सब हिपी थे। रथ यात्रा में हिपी पार्क है वहाँ। हाँ, तो प्रभुपाद रथ यात्रा शुरू किए। तो अभी देखो ऐसा कोई महीना खाली नहीं कि हर 12 महीना इस्कॉन में रथ यात्रा चलता रहता है। हाँ, 12 महीना इस्कॉन में रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जो है बड़े दयालु हैं, उच्च से उच्च ब्राह्मणों का सेवा लेते हैं, और एकदम कनिष्ठ से कनिष्ठ लोगों का भी सेवा लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं। भगवान जैसे सूर्य उदय होता है, मल को भी सुखाता है, गंगा का जल को भी सुखाता है, गटर का पानी को भी सुखाता है, बराबर है ना। तो उसी प्रकार जगन्नाथ जो है, इतने जगन्नाथपुरी में, कल तो बम्बई में निकले, वहाँ पर अभी भंडाल में है, जमुना बाई कॉलेज में, स्कूल में। तो जब अपने मौसी घर में आते हैं स्नान यात्रा के बाद, थोड़ा उनका शरीर कमजोरी, फीवर हो जाता है, हैं। तो हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में, विदेश में जाओगे तो हर्बल टी देते हैं, बुखार थोड़ा हल्का लगेगा करके, लेमन टी, हर्बल टी, ऐसी। देखो भाव, तो भाव, भगवान केवल भाव के भूखा है। 1989 में जब पहला पे गया, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला, कनाडा मॉन्ट्रियल है, तो ये जगन्नाथ के ये अवसर था। तो बोलते यार जगन्नाथ वेयर है, ओ जगन्नाथ सीख दिस फेवर, यू नो, गिव टी आल्सो ऑफर। तो 2 जगह ऑफर, राधा मनोहर और वो अलग रूम में रखे थे मॉन्ट्रियल में। तो ये भाव में देखा विदेशों में, तो बहुत बहुत हम लोगों से आगे हैं, बहुत डेडिकेट हैं। गुरु महाराज का पुस्तक पढ़ के ही सब भक्त बने हुए हैं। तो हमें हर दिन जो है प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब आजकल आप लोग जो है वो अपने अपने गुरु का किताब ज़्यादा बेचते हो। तो मेरे प्रभु लोग, आप लोगों से विनती है, प्रभुपाद का किताब बेचो। प्रभुपाद का किताब आजकल कम बिक रहा है, प्रभुपाद का किताब बेचो। हाँ, प्रभुपाद का पढ़ो, सब लिख दिए हैं, वेरी इजी पढ़ने के लिए।
किसको दुख लगे तो क्षमा चाहता हूं। अरे हम प्रभुपाद से क्या लिख सकते हैं जी, हैं? रामायण रामायण, अरे हम तो वाल्मीकि रामायण से बात करो, तुलसीदास से नहीं। तो उसी प्रकार बोनाफाई प्रभुपाद, बोनाफाई जिसे आचार्य इस्कान आचार्य प्रभुपाद हैं। मेरे प्रभु लोग देखो कितना अच्छा नैमिषारण्य मंडली ऋषि मंडली के बराबर यहाँ लग रहा है राधा रास बिहारी के सामने। और जब मैं यहाँ भर्ती हुआ 1975 29 दिसंबर को, तो केवल हम 4 इंडियन थे, 4 थे, मैं होके 5 हुआ है। अभी देखो सभा खचाखच भरा हुआ है। तो आप सब पढ़े लिखे बच्चे लोग हो, हैं? तो आप लोगों से मेरा विनती है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद के पुस्तक। तो कितने लोग प्रभुपाद पुस्तक हर दिन पढ़ोगे 2 घंटा? हाथ उठाइए। 2 घंटा नहीं, 1 घंटा पढ़ोगे? हाँ 1 घंटा, 1 आवर्स। कितने लोग पढ़ेंगे? स्टूडेंट जो बाहर से आए सब है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ, मैं अभी यहाँ था काफ़ी दिन, अभी 18 साल से रायपुर में हूँ। कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़, या ब्रिटिश राज किया छत्तीसगढ़ नाम रखा था, एक्चुअली कौशल प्रदेश माता कौशल्या का जन्म स्थान है। हाँ वहाँ ऐसी बड़ा मंदिर बन रहा है। भगवान के पाके आप लोग का आशीर्वाद हो तो जल्दी आ जाएंगे भगवान वहाँ। तो कौशल प्रदेश में महात्मा, जब भगवान राम वनवास गए तो 14 साल के अंदर 10 साल थे। दंडकारण्य हमारे मंदिर से केवल 60-70 माइल दूर है। हाँ कभी आप लोग आओगे तो बताएंगे। तो अभी मैं आप वाणी में विराम दे रहा हूँ। कितना समय दोगे? हैं समय कितना क्लास चलेगा महाराज? प्रभु महाराज ही बोलेंगे ना। 9 बजे तक, 9:15 बजे तक है, 9:30। हाँ महाराज को देता हूँ। तो ये महाराज जो हैं बहुत, कल महाराज ने क्या सुंदर संस्कृत से जगन्नाथ अष्टकम बताए, तो फिर बताएंगे। हारमोनियम तैयार रखे हुए हैं और मेरा वाणी, हाँ मैं अपना वाणी यहाँ विराम कर रहा हूँ। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ? इन इंग्लिश और हिंदी? उड़िया बोलो। हैं? हिंदी? ओके। हरे कृष्ण। सो आज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की आज आविर्भाव तिथि है। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। तो पहले एक वैष्णव भजन गाएंगे, फिर एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबार पतित पावन तुम्हा बिना केहू नाय। पतित पतित पावन तुम्हा बिना केहू नाय। पतित पावन যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহার এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়। এমন
एमन दयाल प्रभु केबा कोथा पाय एमन गंगार परस हईले पश्चाते पावन गंगार पर दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण दर्शने हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम हरिस्थाने तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तोमा स्थाने तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तोमा स्थाने तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हार गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण गोविंद गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण गोविंद कहे न प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली प्रति जन्मे नरोत्तमे करो दया अपनार बोली नरोत्तमे एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई एबार कर पतित पावन तोमा बिना केहू नाय पतित पावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाध्यै कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अददान तृणं दन्तय्यवं जाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजौ धूलिश्यां जन्म जन्मनि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि मैं मेरे गुरु महाराज के बारे में क्या कहूँ। व्हाट कैन आई स्पीक अबाउट माई गुरु महाराज। ही इज ए वैकुंठ मैन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस भौतिक जगत के नहीं थे। वो नित्य धाम से भगवान के नित्य परिकरों से जो कि नयन मंजरी जिनकी नित्य स्वरूप आध्यात्मिक जगत में था, तो उन्होंने ही इस धरा पर पधारे थे अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा पूर्ण करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि आध्यात्मिक जगत में कमल मंजरी के रूप में थे, भगवत आदेश भगवान के ही गौरांग महाप्रभु के ही आदेश से यहाँ पर पधारे। और इन्होंने आकर भी देखे कि प्रचार कार्य में इनको सहायता चाहिए, इसलिए वो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे कि मुझे एक भक्त पुत्र दीजिए। उस समय उन्होंने मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, आप तो मुझे भेजा यहाँ पर, लेकिन आपकी प्रचार कार्य को मैं अकेले करना समर्थ नहीं हो रहा हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझे एक ऐसे ही पुत्र भेजिए, मुझे पुत्र दीजिए जो आपके कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी इनके प्रार्थना को स्वीकार किए भक्ति विनोद ठाकुर के। तो इसलिए भगवान ने भक्ति विनोद ठाकुर तथा भगवती देवी दासी को आश्रय करके इनके चौथा पुत्र के रूप में, चतुर्थ पुत्र के रूप में आए। कौन, क्या नाम था उनकी? बिमला प्रसाद जी के, जिसके नाम भक्ति विनोद ठाकुर ने बिमला प्रसाद रखे। इनके नाम बिमला प्रसाद क्यों रखे? क्योंकि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लाकर इनके अन्नप्राशन कराए थे, जो 6 साल के बाद 6-7 साल की उम्र में थे। तो जो जगन्नाथ जी को जो कोई कुछ भोग लगता है, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद बनने के बाद इसको अर्पण की जाती। किसको? बिमला देवी को। वो पहला इनके प्रसाद खाने की अधिकारिणी है। किसकी? जगन्नाथ जी के। तो क्योंकि ये बिमला देवी का ही प्रसाद मैंने महाप्रसाद लाकर खिलाए, तो इसलिए उनके नाम भी रखे बिमला प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर की आविर्भाव का दिवस था कि शुक्रवार 1874 फरवरी 6 तारीख के इनके आविर्भाव हुआ था जगन्नाथपुरी में। आज भी आप जब पुरी जाते तो देखते हैं वो चैतन्य
चैतन्य गौड़ीय मठ उनके जन्म स्थान आज भी है। जहाँ पर वहाँ अपने जन्म लिए थे, कहा जाता है कि वो विग्रह को वहीं पर स्थापना की गई है, उसमें गौड़ीय मठ में। जहाँ पर उनके आविर्भाव हुआ था, माता भगवती देवी की गर्भ से उन्होंने जन्म लिए थे, उसी पार्टिकुलर वही स्थान पर, कहते कि उस स्थान पर जो खुदाई किए थे वहाँ पर चंदन जैसे बहुत सुगंधित था वो स्थान। तो जन्म से ही जो जन्म लिए तो उससे इनके जो एम्बिकल को क्या कहते हैं, अंतनाड़, ये ऐसा ही लिपटा हुआ था, ऐसे जैसे एक जेनेऊ जैसे लिपटा हुआ था। तो इसलिए प्रभु जी जैसे महाराज कह रहे थे कि वो क्या जनेऊ का चिन्ह था शरीर में, उस देखकर सभी लोग, भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि ये तो बहुत शुभ लक्षण है, ये जन्म से ही लग रहा है कि ब्राह्मण है। चलो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं और मेरे गुरु महाराज हम दोनों बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ, भक्त के घर में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में, और श्रील प्रभुपाद जी के जन्म गौर मोहन दे, प्रभुपाद जी कहते माई फादर इज ऑल्सो ए प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त थे। तो जब इनकी 6 महीना उम्र आगे बढ़ा, मैं इसको ब्रीफली जा रहा हूँ क्योंकि तभी रथ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रहा था, जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। ठीक जाकर भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, वहीं उनकी क्वार्टर था मजिस्ट्रेट की, तो सामने ही, उनके घर के सामने ही रुक गया रथ और आगे नहीं बढ़ा। कितनी हाथी घोड़ा, कितने सैन्य सामंत फोर्स यूज करके भी इसको हिला नहीं सके जगन्नाथ जी के रथ। दोनों रथ तो चले गए, बलराम और सुभद्रा, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ वहीं स्थगित हो गया। तो इस लगभग 3 दिन तक ऐसे रहा। तो उनकी भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी भगवती देवी दासी, उन्होंने इस सुजोग देखकर बच्चे को हाथ में लेकर रथ के ऊपर आए। रथ के ऊपर आए जगन्नाथ, क्योंकि ऐसे अलाउ नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट की वाइफ है, कौन रुकेगा। उसने मजिस्ट्रेट के मीन्स प्रभुपाद जी कहते थे कि नेक्स्ट गवर्नर, तो लेके चरण में रखी हैं, जगन्नाथ जी के चरण में रखते ही वो पलट गए, जैसे प्रणाम की मुद्रा में। तुरंत जगन्नाथ जी की गले में जो गार्लैंड है, कई गार्लैंड है, इसमें से एक गार्लैंड तोड़कर इनकी गले में लपट गया। किसकी? भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद हैं, विमला प्रसाद दत्त हैं। तो तभी सारे पुजारी जो थे रथ के ऊपर से ताली लगाने लगे जोर जोर से, हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कहे कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है, ये तो जगन्नाथ जी की महान भक्त बनेगा और जगन्नाथ जी की प्रचार सारा दुनिया में करेगा। हम जो आज देख रहे हैं ये रथ यात्रा महोत्सव जो सारा विश्व में फैला है, ये 1934 में जो अलारनाथ में एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक लेक्चर दिए, प्रवचन में कहे थे, ये जगन्नाथ जी को, अलारनाथ जी को प्लेन में बैठाकर पाश्चात्य जगत में ले जाना पड़ेगा। जब तक जगन्नाथ पाश्चात्य जगत में नहीं जाएंगे, पाश्चात्य जगत के उद्धार होने वाला नहीं है, विश्व की कल्याण नहीं होगा। तो उनकी ये इच्छा को उनकी ही शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ही पूर्ण की। लेकिन ये भविष्यवाणी वो किए थे 1934 में, प्रवचन में कहे थे कि जगन्नाथ जी को लेके जाना पड़ेगा, प्लेन में ले जाएंगे हम, कहाँ? पाश्चात्य जगत में। तो इसी प्रकार तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और थोड़े बड़े होने लगे हैं। 6 महीना में तो ऐसा ही हो गया। अब जैसे आप सुन लेते 3 महीना में क्या, नहीं सॉरी 3 साल की उम्र में हो गए तो भक्ति विनोद ठाकुर आम लेकर आए थे, आम को मुख में लगा लिए तो ऑफरिंग के बिना, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे कि तुमने अपराधी बना, यू आर ऑफेंडर, भगवान के ये जगन्नाथ के लिए आया था, तुम इसको मुख लगा लिया। छोटे बच्चे 3 साल के इसको रखे दिमाग में, पूरे साल भर आम नहीं खाए, सॉरी पूरे जीवन जिंदगी भर आम नहीं खाए। भक्ति श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, आम जो कभी भी कई शिष्य लेकर आता था, आम बहुत सुंदर हैं, फलों की राजा कहा जाता आम को, लेकिन भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर बड़े दैन्यता से कहते थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं इसको खाने की योग्य नहीं हूँ। भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर इतनी दैन्य थे, जब भी कोई बात में जब वो महान आचार्य बने तो इन शिष्य लोगों ने जब कहते थे कि प्रणाम करते थे, वो क्या कहते थे? दासोस्मि, मैं आपके दास हूँ। ये तो केवल एक सेवा मुझे भगवान ने दिया है आप लोग को आध्यात्मिक ज्ञान में टर्न अप करना,
लेकिन मैं भी आपके ही दास हूँ। सभी जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे जो बढ़ने लगे, 7 साल उम्र में उन्होंने भगवत गीता के पूरे श्लोक 700 श्लोक कंठस्थ कर दिए थे। केवल कंठस्थ नहीं किए थे श्लोक खाली तोता की तरफ नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते थे, एक एक श्लोक का अर्थ सहित आपको समझा सकते थे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माई गुरु महाराज इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, एन वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। वो कहीं भी चलते थे, तब कहीं भी जाते थे, इनको कोई भी प्रश्न किसी भी विषय टॉपिक में कोई पूछता था, उसका परफेक्ट आंसर उनके पास रहता था। किसके पास? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बड़े टैलेंटेड थे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे पूरे लाइफ भर हैं। प्रभुपाद जी कहा करते मैं गुरु महाराज ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पूरी लाइफ ब्रह्मचारी रहे। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न थे उनके प्रति। वो जानते थे कि मैं जो जगन्नाथ जी की प्रार्थना करता था यही पुत्र है हैं जो कि मुझे जगन्नाथ जी ने दिए हैं, ये गौरांग की अवश्य प्रचार करेगा। और ये विशेष रूप में रूपानुग विरुद्ध, उनके प्रणाम मंत्र में आप देख रहे 3 बार कहते हैं रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणे हैं। ये रूप गोस्वामी की शिक्षा को ही विशेष रूप में प्रचार किए, युक्त वैराग्य की शिक्षा। युक्त वैराग्य शिक्षा ये रूप गोस्वामी की टीचिंग से हमें प्राप्त होता है, तो उसी को ही उन्होंने प्रचार। इसलिए रूप गोस्वामी उनके प्रणाम मंत्र भी बार बार कहते हैं रूपानुग विरुद्ध। रूप गोस्वामी की जो विरुद्ध उसको त्याग वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनकी प्रिय भजन में वो भजन है कौन सा? श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर भजन पूजन। मैं पूरा भजन नहीं गा रहा हूँ, लेकिन कहने के है कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को ही अपनाए थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी हमें रूप गोस्वामी की 2 किताब को अनुवाद करके दिए, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो ये जब आस्ते सारे सीमित समय में पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ मुख्य चर्चा करेंगे घटना उनके जीवन की। ये विशेष रूप में प्रचार हम जो बैठे हुए इधर, हमें अभी जो ऐसे कुर्ता पहन रहे हैं, कुर्ता पहन के पहले साधु कोई कुर्ता नहीं पहनते थे, सिलाई हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे। हमसे कुर्ता पहने हुए जनेऊ धारण किए। जिसके घर में केवल ब्राह्मण घर में जन्म होता था उसको जनेऊ धारण करके अधिकार रहता था। लेकिन हम जो भी जनेऊ धारण के बैठे हैं, विग्रहों को अर्चना कर रहे हैं, भागवत की कक्षा दे रहे हैं, ये सब किसकी कृपा है? विशेष रूप में प्रभुपाद जी के थ्रो में है, लेकिन वहीं से अंश पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ही ये परंपरा आई है विशेष रूप में। पहले कोई ये हिम्मत नहीं था किसी की, जानते थे आज केवल जन्मगत ब्राह्मण जो जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में वही केवल जनेऊ डाल सकता है, वही केवल अर्चा विग्रह की अर्चना कर सकता है, वही केवल भागवत की कक्षा दे सकता, ये था समाज में। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इसको थियोरेटिकली कर लिखते थे कि नहीं, जन्म कर्म नहीं सॉरी भगवान कहे कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुযাयी होना चाहिए जाति विभाग। लेकिन प्रैक्टिकल करने की किसी की हिम्मत नहीं था कि समाज में इसको प्रचलन करना। इन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे रिवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने स्टार्ट किए इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। उन्होंने 64 गौड़ीय मठ का स्थापना की, स्वयं गौड़ीय मठ को मंदिर बनाए, मंदिर बनाकर स्वयं संन्यास भी लिए, आचार्य के पद पर आए हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते ये कैसे संन्यास, आपने कौन इनको संन्यास गुरु है? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूर्ववर्ती आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा है, उदाहरण को स्वीकार कर। रामानुजाचार्य भी इस प्रकार स्वयं संन्यास लिए और प्रचार कार्य में निकले थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये इन्होंने एक बार जब पुरी में थे, एक विशेष व्यक्ति था जो कि वो भी बड़ा प्रभावशाली था, लेकिन सहजिया व्यक्ति था, जिन्होंने एक मंत्र शुरू कर दिया, हरे कृष्ण मंत्र का छोड़ के वो एक मंत्र शुरू किया, क्या? भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, बोला ये अलग शुरू किया। तो उन्होंने बड़ा इसके साथ लड़ गए पर पर झगड़ा इतनी आगे बढ़ने लगा, ये इनकी कुछ फॉलोअर्स हो गए तो उनका फॉलो मारपीट तक। भक्ति विनोद ठाकुर देखिए कि अच्छा नहीं है, मजिस्ट्रेट के लड़का ये क्या कर, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इनको भेज दिए। कहाँ? बोले जाओ तुम मायापुर चले जाओ, थोड़ा दिन जाओ मायापुर जाके वहाँ भजन करो थोड़ा दिन। इसलिए तो उन्होंने आए और मायापुर में कहाँ जोगपीठ जहाँ है, जोगपीठ में वहाँ बैठ के क्या करते थे?
एक छोटा झुपड़ी बनाए और भजन करने लगे। डेली 3 लाख नाम जपते थे हरिदास ठाकुर की तरफ। एक छोटे से मिट्टी का पात्र में थोड़ा खिचड़ी बना लेते थे, एक बार सुखा लेते थे। चतुर्मास्य के टाइम तो हाथ में भी नहीं, डायरेक्ट मुख लगाकर जितने खा सकते थे, हैं? एक बार खा के दिन रात भजन करते थे। ये नहीं केवल गोष्ठानंदी थे, भजन भी कैसे करना उन्होंने आदर्श निभाया था। 3 लाख नाम जपा करते थे। 9 साल तक इस प्रकार भजन किए, क्योंकि 10 करोड़ नाम लेने की संकल्प ने 100 करोड़ नाम लेने की वो संकल्प रखे थे। जब इन नाम लेने की संकल्प पूरी हुई तभी स्वयं पंचतत्व की उनको साक्षात्कार हुई, पंचतत्व इनको दर्शन दिए। गौरांग महाप्रभु ने कहे कि जाओ, हो गया तुम्हारे भजन, अभी क्या करो, मेरा वाणी को सार्थक करो। पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मरो नाम। ये कौन करेगा, जाओ। इसलिए पंचतत्व के आदेश लेकर अपने पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर तथा गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की छवि रखकर 1918 में उन्होंने क्या धारण किया, दंड संन्यास धारण किए। गौड़ीय मठ की स्थापना की है, मंदिरों के निर्माण करके ही प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना। इन्होंने इतने बड़े विप्लव देखे, कहीं उस समय कोई ये स्वप्न भी नहीं देखा था। इन्होंने लोगों को सब दीक्षा देने लगे, जो शूद्र की हर बात, जो नीचे को सब कोई भी योग्य बस इनको दीक्षा देने लगे, ब्राह्मण दीक्षा देने लगे योग्यता देखकर। और इनको अर्चना भी अपने मंदिर जो बनाए उसी मंदिर में सब अपने दीक्षित शिष्यों को सब अर्चना के अधिकार दिए, भागवत कक्षा देने के अधिकार दिए। ये देखकर स्मार्त ब्राह्मण सब बड़े गुस्से हुए, ये क्या है। तो उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने मर्डर करने के लिए भी प्लान किया। जो लोकल पुलिस, जो नवद्वीप में जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहे कि देखो हमें ये जो बिमला प्रसाद है ना, जो इसका लड़का भक्ति विनोद, उसको हम मर्डर करेंगे, तुम 25,000 रुपया उसको लांच दे रहे, तुम इसको रखो और इसको हम मार के फेंक देंगे गंगा में, तो आप चुप रहना इनसे इस केस में कुछ बोलना नहीं। तो पुलिस ऑफिसर आकर बोला कि भक्तिनाथ ठाकुर कहा, देखो विमल बाबू, आपको ऐसा ही हम सुन रहे कि ये लोग आपको मर्डर करेंगे, हमको पास आए थे, बड़ा सावधान रहना थोड़ा। हम तो ऐसे ही लांच लेते हैं, लांच लेके ऐसे काम अलाउ कर दे। 25,000 उसमें मैंने अभी कितने हैं, अभी बहुत पैसा है, 25 लाख ये पे हैं, आधा करोड़ रुपया की अभी क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहे कि लेकिन आप एक वैष्णव हो, हम जानते हैं भक्ति विनोद के लड़के हो, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हो, इसलिए हम ऐसे ही मना किए इनको, नहीं हम ऐसे कार्य में पैसा नहीं ले सकते। तो इसलिए समझ गए ये तो फिर पकड़ा जाएंगे, हम यदि करेंगे ये वही बोल दिए पुलिस को, पहले पुलिस हमको ही पकड़ेगा। तो इसलिए कार्य, लेकिन फिर भी आप सावधान रहना, हम आपको बॉडीगार्ड दे रहे हैं, आप कुछ सिक्योरिटी रखो। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने हंस दिए कहे मुझे कोई सिक्योरिटी जरूरत नहीं है, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। वो से भयभीत नहीं थे, निर्भीक, जैसे प्रभुपाद जी ने अभय चरणार बिंद कृष्ण के आश्रय में सदा निर्भीक रहते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी निर्भीक रहते थे, किसी को डरते नहीं थे। इसलिए इनको क्या कहते हैं, नृसिंह गुरु, इनको नृसिंह गुरु कहा जाता है। इनके सामने कोई जाता तो मायावादी वो रास्ता बदल के चले जाता था, सामने आने की हिम्मत नहीं रहता उनको। यदि कोई आ गया कलर पकड़ लेते सीधे। Why are you telling that Supreme Personality of Godhead has no, he has no body, he has no name, what is this? बहुत डांट देते थे, डर जाते थे, भाग जाते थे सब, कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, कोई मायावादी शून्यवादी कोई है। इसलिए इनको नृसिंह गुरु कहते हैं। इन्होंने अपने प्रिय, जैसे प्रभुपाद जी की कैसे मिले वाले सुन चुके। अब 1922 में इन्होंने साक्षात्कार प्रभुपाद जी ने इनको मिले थे। किनको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। कहाँ पर? वही कलकत्ता में है। कलकत्ता में जो गौड़ीय मठ था बाग बाजार में, तो ही गौड़ीय मठ में प्रभुपाद जी नहीं जा रहे। प्रभुपाद कहते मैं साधुओं को बहुत देखा था बचपन में, मैं नहीं जाना चाहता था। ये लाल कपड़े पहनने वाले डेली हमारे घर में 15-20 आते थे। उनके पिताजी लेके आते थे और सबको पिताजी कहते प्रणाम करो, आशीर्वाद दो मेरे लड़का को। क्या आशीर्वाद? राधा रानी का भक्त बनेगा, भागवत का प्रचार करेगा। हम जानना चाहिए क्या आशीर्वाद साधु को मांगना चाहिए। हम कहेंगे साधु है प्रणाम कराओ, और जो हमारे बेटे को आशीर्वाद दो जैसे IIT टॉपर बन जाएगा। प्रभुपाद कहते IIT टॉपर जितने ही हैं, ये IITians सब है, ये सब शूद्र है। लेकिन प्रभुपाद जी ने
प्रभुपाद ने इसलिए कहे कि देखो, उनके एक मित्र था नरेन। नरेन कहे कि चलो अभय, तुझे मैं एक साधु के पास लेके जाऊंगा, कलकत्ता में बहुत अच्छे संत है। प्रभुपाद ने तुम ही जाओ दर्शन करो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं जानता हूँ वो साधु, बहुत साधु देख लिया हैं जिंदगी में। लेकिन फिर भी वो हाथ पकड़ के लेके गया है। प्रभुपाद जी कहते वो नरेन मुझे हाथ पकड़ के लेके गया। अब भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर ने बैठे थे व्यासासन में, वो बैठे थे, कुछ वरिष्ठ शिष्य, कुछ सन्यासी थे, कुछ उनको प्रीचिंग कर रहे पूरा। ये अपने मित्र के साथ जाकर प्रणाम किए, प्रभुपाद जी को प्रणाम, नहीं सॉरी, भक्तियान सरस्वती ठाकुर प्रणाम किए, मित्र प्रणाम किए, प्रणाम किए। उठते ही भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने आंगुली सीधे देखा है, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू नॉट टेकिंग दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा गीता भागवत के प्रचार पाश्चात्य जगत में क्यों नहीं कर रहे हो हैं? प्रभुपाद जी ने उस समय बोलते थे, गांधी मूवमेंट में एक सक्रिय लीडर थे, गांधी का जो वो चलता था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन तो थे। खदी पहने थे प्रभुपाद जी भी, खदर नहीं खदी पहने हुए थे, धोती कुर्ता, लेकिन साहस होने के लिए ये नहीं, अभी हमारा देश पराधीन है, ये पराधीन देश का लोग का बात कौन सुनने वाला है? हम पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में चैतन्य महाप्रभु की वाणी, गीता भागवत प्रचार। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके आर्गुमेंट को खंडन किए हैं। ये चैतन्य गीता भागवत की प्रचार व चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार ये इसकी पर निर्भर नहीं करता है। सापेक्ष ये तो कोई भी राजा आएगा, कोई भी जाएगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? शासक आज ब्रिटिश कर रहे, कल इंडियन कर, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रचार में है। हमारा जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व है, इसको संकीर्ण भावना में लाने से कुछ फायदा नहीं। ये जो संसार की जो रीति है चलते रहेगा, दुख सुख हैं ये चलते रहेगा। दुखालयम आश्वासतम अनित्यम असुखलोकम, ये समस्या को समाधान करना है। उसके लिए महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना। प्रभुपाद जी जब उनके आर्गुमेंट्स में डिफीट हुए, कहे कि पहले बार एक व्यक्ति मुझे आर्गुमेंट में लॉजिक में परास्त किया, नहीं तो कभी बड़े स्टूडेंट लीडर थे, बहुत स्ट्रंग तर्क करने वाले थे। प्रभुपाद जी कोई तर्क में पहले परास्त नहीं किया था, पहले बार तर्क में परास्त हुए। तब ने उन्होंने मन से मन सोचे, यही व्यक्ति भविष्य में मेरे स्पिरिचुअल गाइड बनेगा, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर बनेगा, हैं ऐसे मन से रखे। लेकिन आए तब से उन्होंने मेडिटेट करने लगे हैं। कोशी में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पार्टी मैंने वो प्रचार का ब्रजमंडल परिक्रमा का 10,000 लोग को लेके आए थे। आज भी हम इसलिए प्लानिंग करते हैं ना, जो परिक्रमा जाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा बा कहीं भी नवद्वीप मंडल परिक्रमा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती के ठाकुर कितने लोग रहते थे? 10,000 लोग लेके चलते थे, 22 से ज़्यादा। ये हम भी गोल बनाते हैं इसका, कहाँ इतने लोग कहाँ से हैं लेके चलेंगे। फिर भी अभी कुछ साल पहले प्रयास चल रहा है। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए, उस समय इलाहाबाद में प्रभुपाद जी अपने क्या है प्रयाग फार्मेसी, अपना मेडिसिन का कुछ बिजनेस करते थे। उन्होंने देखी कि उनकी अभी तक दीक्षा नहीं ली है, लेकिन एस्पायरिंग थे उनसे दीक्षा लेना। देखिए कि गुरु महाराज मेरे अभी गए हैं, तो उन्होंने भी आए, कोसी में मिले। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कैंप लगा हुआ था उधर, वहाँ रुके, रात शाम के टाइम पहुँचे, रात्रि विश्राम किए, सुबह सुबह मंगला आरती में अनाउंस हुआ, आज डिवाइन ग्रेस भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा में नहीं जाएंगे। कोशी से शेषशाही परिक्रमा जाएगा 18 किलोमीटर, लेकिन प्रभुपाद नहीं जाएंगे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं जाएंगे। वो यहीं रहकर गीता की प्रवचन करेंगे। जिसको प्रवचन सुनना यहाँ रहना, जिसको जाना परिक्रमा जा सकते। 10,000 लोग से लगभग 500 लोग केवल रह गए और सब चले गए परिक्रमा। लेकिन उनमें से भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर प्रारंभ किए 6 बजे मॉर्निंग में। 6 बजे से चला लेक्चर 12 बजे तक। कितने घंटा? 6 घंटा। 1 घंटा के बाद कुछ उठ के चले गए, 2 घंटे के बाद कुछ हैं। लास्ट को जो 6 घंटा 12 बजे कंप्लीट हो रहा था, खाना पीना भी कुछ नहीं। आप लोग को ऐसे सुनोगे हैं, भाग जाएगी। आज तो 12 बजे तक फास्टिंग भी है, ऐसा है ना, फास्टिंग है। पुष्पांजलि 12 साढ़े 12 बजे। लेकिन तो उन्होंने देखे, लेकिन अंत में जो 6 घंटा बीत गया, देखे थे 2-3 लोग बैठे थे, उनमें से एक थे कौन? अभय बाबू। उस समय अभय गृहस्थ आश्रम में थे अभय बाबू। 1 साल के बाद प्रभुपाद जी की दीक्षा हो रहा था इलाहाबाद में। वो गौड़िया मठ है, इस विग्रहों को प्रभुपाद जी ने ही डोनेट किया था जब वो उनके बिजनेस था। तो उस गौड़िया मठ में जो प्रभुपाद जी की दीक्षा, और तो प्रेसिडेंट जो था आके रेकमेंड बहुत कुछ बोल रहा था कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को
प्रभुपाद ये अभय बाबू बहुत अच्छे हैं, बहुत दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, बिगड़ों को भी डोनेट के बहुत कुछ बोले, इनको तो कुछ मैनेजमेंट में भी भाग लेना चाहिए, ऐसे बहुत इनका दीक्षा पूरा परफेक्ट कैंडिडेट है दीक्षा के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे आप जितने बोला ये सब योग्यता नहीं है दीक्षा लेने की है। इसको मैं इसलिए शिष्य रूप में ग्रहण करता हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ इनको श्रवण करने की बहुत रुचि है। मैं इनको देखा हूँ कोशी में ब्रजमंडल पर, इनको श्रवण करने में बहुत रुचि है, ये है दीक्षा लेने की योग्यता। हाँ से कहेगी भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इनको फिर शिष्य रूप स्वीकार किए। अभय चरण केवल नाम तो घर के था लेकिन केवल लगा दिए क्या अभय चरणार अरविंद है, इसका दीक्षा दिए। दीक्षा दे कि फिर वही आदेश दिए, हैं यू आर यंग एजुकेटेड बॉय, तुम्हारे पास में धन है तो जो किताबों को अंग्रेजी में छपाना, पाश्चात्य जगत में इनकी वितरण करना है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही पुस्तक वितरण को क्या नाम दिया? बृहत मृदंग। आज जब कहे बृहत मृदंग, आप बीबीटी ऑफिस में देखोगे चित्र है, किताब है और मृदंग और करताल। हाँ क्योंकि हम सब जाते हैं, लोग राधा कुंड में जाते हैं भजन करने के लिए। किसके लिए जाते हैं? भजन करने। लेकिन उसी राधा कुंड के किनारे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये आदेश दिया था प्रभुपाद जी की बात में। फिर जब राधा कुंड में थे भक्ति सरस्वती ठाकुर आए थे तो ये गए, क्योंकि राधा कुंड आए थे विशेष रूप में पधारे थे। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में कार था, पूरा इंडिया में 10 कार था, उनमें से एक कार था किसके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। प्रसिद्ध संत थे पूरे भारत में, कहीं भी जाते थे तो इनके न्यूज़ सब पेपर में आता था, आज यहाँ जा रहे हैं, आज का उनके यहाँ प्रोग्राम है। तो प्रभुपाद ने जो आए राधा कुंड आ रहे हैं, राधा कुंड के बाबा जी लोग सब स्वागत करने के लिए खड़े थे। लेकिन जब वो आए कार से कैसे आए थे? पैंट शर्ट पहन थे, पूरे सूट शर्ट टाई बांध के, बूट पैर में बूट और चश्मा तो लगाते ही, पगड़ी, पूरे टोपी लगा कर आए थे, जैसे कोई वेस्टर्नर व्यक्ति कोई इधर पधारा है। लेकिन आगे जो राधा कुंड के किनारे पर उस दिन में किसी की हिम्मत नहीं था कि बूट पैर में रख कर उतारे हैं, सो नंगे पैर में घूमते थे लोग हैं। लेकिन जो उतारे बाबा जी लोग तो घिर के थे पहले से, तो कहे कि ये जो भक्ति विनोद का लड़का जो बिमला प्रसाद आने वाला था कहाँ है वो सोच रहे कि ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला होगा। कहले आई एम, मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ, मैं इधर आया हूँ आप लोग को सिखाने के लिए कैसे चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक करना, महाप्रभु कैसे प्रसन्न करना। माला लेके झूली लेके बढ़ गया इधर सब, प्रचार कौन करेगा? महाप्रभु की वाणी कौन सार्थक करेगा? हैं पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मरो नाम। ये हरे कृष्ण मंत्र का पूरे विश्व में प्रचार होगा, सभी शहर गांव हैं, जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा। ये कौन करेगा? माला लेके हरिनाम करने के हरिदास ठाकुर के इमिटेशन कर रहे हो हैं, यहाँ बैठ के सब कुटिया बना के। डांटने लगे उनको, तो आए थे, बोले क्या हुआ? तो वापस तो चले गए। कुछ लोग तो ड्रेस देख के पड़ेगा, ये क्या साधु है, पैंट शर्ट टाई हैं। कहे कि शाम को कक्षा में आओ, शाम को कक्षा होगा हैं। शाम को जब आए कुछ लोग सब सुनने, वो ईशोपनिषद लेके बैठे थे, क्योंकि वो बाबा जी लोग सोच रहे थे कि हम क्या सुनेंगे, कुछ रसकाव्य कथा, उज्ज्वल नीलमणि, कोई ललित माधव, विदग्ध माधव, कुछ ऐसा ही, कुछ गोविंद लीलामृत कुछ पढ़ाया जाएगा, उससे चर्चा होगा, राधा कृष्ण की रस कथा। देखिए ये क्या पढ़ने लगी, ईशाभाष्यम इदम सर्वम जत किंच्या जगत्याम जगत तेन भुक्तेन तेन त्यक्तेन भुंजिता मागध कस्य सिद्धनम। संसार के सारे धर्म कृष्ण का नहीं, सारे धन कृष्ण का है। जिसको जितनी अपने प्रारब्ध के आधार पर कृष्ण की इच्छा से प्राप्त हुआ उसी में संतोष रहना चाहिए। जानते हुए धन किस दूसरे का है उसके प्रति लोभ नहीं करना चाहिए। कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत बड़े ज्योतिर्विद थे, भविष्य जानते थे। आज हम देखेंगे राधा कुंड में बाबा जी लोगों की अकाउंट जो बैंक से खुला है, अकाउंट से करोड़ों संख्या, करोड़ों में अकाउंट है। कहाँ से? ये तो पता था ये क्या कर रहे हैं। कहते कि हम दास गोस्वामी की अनुयायी है। दास गोस्वामी क्या करते थे? तो अपने लड़के पिताजी के सारे सब कुछ त्याग कर हैं, कौपी न कंथा आश्रय करके रह की भजन करते थे हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत दान बोले कि यस यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। ये ईशोपनिषद पहले समझो। अभी तुम रस कथा बात सुनोगे, पहले इसी को समझो, यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस।
और तो चिढ़ गए, सारे बाबा जी भर वापस गए। तो इसलिए आज भी वो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम सुनने से बिगड़ते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर भी अपने सिद्धांत में कभी हिले नहीं। उन्होंने प्रचार इसी प्रकार प्रचार के पर बल दिया है। वही राधा कुंड के किनारे पर प्रभुपाद जी को उन्होंने बताए। अभय बाबू थे उस समय, अपने छोटा लड़का वृंदावन के साथ आए थे प्रभुपाद जी। कहे कि अभय, तो प्रभुपाद जी फिर पूछे, गुरु महाराज आपके तो इतनी सब वैरागी शिष्य, सन्यासी शिष्य, ब्रह्मचारी सब है, लेकिन मैं तो गृहस्थ हूँ, गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? फिर सेम आंसर, अभय तुम्हारे पास में। तभी उन्होंने एक प्लेन पेपर लाए और प्लेन पेपर के ऊपर चित्र अंकित किए, मृदंग करताल और किताब। क्योंकि देखो मृदंग करताल में जो कीर्तन करते हैं हम 200, 300, 400, 500 ऐसे कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लेकिन महाप्रभु की वाणी को यदि जल्दी जल्दी सार्थक करना है, विश्व भर में इस संदेश को पहुंचाना, गौरांग महाप्रभु के संदेश को, तब क्या करना पड़ेगा? गीता भागवत आदि पुस्तकों को इनको प्रिंटिंग करके किताब के रूप में वितरण करने से आज कोई किताब यहाँ से लेके जाएगा इंडिया में, बॉम्बे में खरीद लेगा, वो फ्रांस में पहुँच सकता है, लंदन में पहुँच सकता है, मॉस्को में पहुँच सकता है, टोक्यो में कहीं भी पहुँच सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि अभय यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तुम धन तुम्हारे पास है तो किताबों को प्रिंटिंग करो, किताब की प्रिंटिंग करके इनको पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में वितरण करो, सेम मैसेज। इसलिए प्रभुपाद ने सोचने लगे, आज हम देख रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस बैठाना, किताब को प्रिंटिंग करना, ये सब इनकी अवदान है। किनकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, इन्होंने आदेश दिया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने इस शिक्षा को इसी उनसे श्रवण की। फिर उस समय तो सोचने लगे मैं कैसे इनके आदेश को पालन करूँगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को। यही ही प्रभुपाद जी का मेडिटेशन था, पूरे लाइफ उसी के ऊपर चिंतन करते रहे प्रभुपाद जी, कैसे इनको सार्थक करूँगा। ये जब इनकी तिरोभाव हो रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 1 जनवरी 1937 है, 1 जनवरी 1937 में, तो 15 दिन पहले प्रभुपाद जी ने एक पत्र भी लिखे थे अपने गुरु महाराज को, सेम क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्लीज यू, कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, ऐसे ग्रस्त। सेम आंसर फिर आया, अभय तुम्हारे पास में यदि धन हो तो तुम अंग्रेजी भाषा में किताबों को प्रिंटिंग करके पाश्चात्य जगत में वितरण करना, इससे चैतन्य महाप्रभु की वाणी विश्व भर में प्रचार हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने इतनी बल दी है किसके ऊपर? किताब वितरण के रूप में। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, प्रभुपाद जी कहा करते। क्योंकि ये आदेश उनका, ये सेवा इनको कौन दिया? उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सेवा उनको दिए थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे इस संप्रदाय के महान आचार्य है, जिन्होंने मेरे से कहा कि वो स्वयं संन्यास लिए और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे। पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठ स्थापना किए। चैतन्य महाप्रभु को चरण चिन्ह, अब दक्षिण भारत में कहीं भी जब भारत में लगभग 108 चरण चिन्ह उन्होंने स्थापना किया। किनके? चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु चरण स्थान व चरण चिन्ह को स्थापना किए। वृंदावन में जब उन्होंने आए थे परिक्रमा के लिए, गोस्वामी लोग का टेम्पल भी नहीं खोलते थे, बंद कर देते थे उनके लिए, कोई तो पत्थर फेंकता था उनके ऊपर, क्योंकि ये जो जात गोसाई को सब बंद कर दिया, मानते नहीं ना, जन्मगत गोसाई को मानते नहीं थे, लेकिन सब दीक्षा देकर सबको शिष्य बना के साथ में लेके आए थे। गोस्वामी लोग का मंदिर के अंदर इनको अलाउ नहीं करते थे, उन दिन ऐसा था। लेकिन आज देखिए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे संप्रदाय में किस एक महान स्थान पर, ऐसे नृसिंह गुरु इसलिए कहते हैं इनको, इनकी वाणी को विशेष प्रचार करने के लिए इन्होंने ही 4 प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ से स्टार्ट किए हैं। एक पर नदिया प्रेस मायापुर में ही एक प्रेस, कलकत्ता में, उड़ीसा में कटक में, आसाम में एक, गुवाहाटी में, वहाँ इसी प्रकार बंगाली में, हिंदी में, उड़िया में, कैसे सब किताब सब प्रिंटिंग होगा, इसके लिए सब वो प्रिंटिंग प्रेस बैठाए थे। नदिया प्रकाश सब न्यूज़ दैनिक पेपर नहीं, कुछ मासिक पत्र था, दैनिक पत्र सब पेपर छिपा कर इसको वितरण करना। यदि प्रभुपाद जी कहते थे कि जो मायापुर में रहते थे, जो कुछ
लोग मैंने कोई जाता था, कोई जाता जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लायक नहीं करता, तो कोई ब्रह्मचारी एक गया नवद्वीप में 2-4 मैगजीन में सेल करके आता था, बहुत प्रसन्न हो जाते थे हैं, उसको बहुत बहुत उनको प्रिय हो जाता था किताब लिखी बांटना, थोड़ा सा कोई बांट के आता था हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी उनके स्टैंडर्ड कितना जपा करना, कितना कहते थे जप करने के लिए हैं, 1 लाख हैं, 1 लाख नाम लेने के लिए कहते थे हैं। एक गौड़िया मठ में एक व्यक्ति था, एक भक्त ऐसा था, वो क्या करता, कुछ सेवा नहीं करता था, माँ दिन भर माला लेके क्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। खाने का टाइम किसी बात नहीं करता था, खाने का टाइम सेवा करने को कुछ सुनेगा नहीं, और खाने के टाइम में कि बैठ जाएगा, बैठ के प्रसाद खा लेगा हाँ। एक टाइम खा लिया बस, फिर माला तो पकड़ के ले गया टाइम बोल के इसको निकाल रहे हैं हम गौड़िया मठ से, क्या है, क्या क्यों निकाल, क्या कारण है। नहीं प्रभुपाद देखो ये हाँ सेवा नहीं कर रहा है, कोई भी सेवा नहीं कर रहा है ना, बातचीत कर रहा है, कुछ किसी को बोलने से कुछ घूंगा की तरफ खड़ा रहता है, क्या करता है ये, प्रज्वल्प करता है, बोला नहीं प्रज्वल्प नहीं करता, कभी किसी से बात ही नहीं करता, मड़ाली घूमता करता। फिर बोला कि सब पूछे इसको कुछ और कोई सेवा इसको आता है, कुछ भी नहीं करता है। कीर्तन में नहीं हाँ प्रभुपाद इसको मृदंग अच्छा बजाना आता है, कभी कीर्तन होता है ना तब जाके मृदंग बजाता है मृदंग बजाता है, कभी गाता है, लेकिन कुछ फिजिकल सेवा नहीं करता। इसको कुछ और बोलो ये कर। भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि मैं गौड़िया मठ बनाया था किसके लिए हाँ, आप लोग बोलते कि ये प्रज्वल्प नहीं कर रहा है, कुछ ग्राम्य वार्ता ना कही वे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे, किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को नहीं कर रहा, कीर्तन अच्छा करता है, मृदंग बजाता है, नाम जपा करता है, मैं बनाया था किसके लिए मठ है। दूसरे दिन में बड़े पत्रिका में पूरा अमृतबजी का पत्रिका जो उसमें एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि यदि कोई व्यक्ति 4 नियम पालन करने के लिए, नशा नहीं करना, जुआसड़ा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संघ से मुक्त रहना, तो साथ साथ 1 लाख नाम लेने के लिए तैयार है, हमारे गौड़िया मठ उसके लिए अपन है, आओ इधर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो और हरे कृष्ण मंत्र जपा करो। 1 लाख नाम लेना संभव है हैं? लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जब गए, पहले वही कहे थे अपने गुरु महाराज। प्रभुपाद जी भी 64 माला जपा करते थे जब वृंदावन में रहते थे दीक्षा लेने के बाद हैं? तो सुबह 4 बजे से प्रभुपाद निकल जाते थे जपा करते करते, फिर 12 बजे तक जब कंप्लीट करके फिर आते थे, गुरु के आदेश को पालन कर। लेकिन ऐसा करना प्रभुपाद जी भी जाए पाश्चात्य जगत में जब कहे, क्या कहे सो संभव, इम्पॉसिबल, 8 घंटा बैठकर माला में जप करना, हमें पाश्चात्य जगत में ये संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने फिर प्रभुपाद जी ने थोड़ा रिहात दिए, कितना बोले 32 राउंड, 32 माला भी वो लोग कहे कि नहीं ये भी नहीं होगा, 1 सप्ताह की बात तो वापस आई कहे कि ये भी नहीं चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि इनको उद्धार कौन करेंगे। गौरांग महाप्रभु की स्टैंडर्ड क्या है, 1 लाख नाम जप करना है। पुरी में जब महाप्रभु रहते थे कहे कि जो लाखपति नहीं है उसके हाथ में पानी भी नहीं पीता हूँ, महाप्रभु कहे डिक्लेयर किए थे। तो सब लोग डर गए थे, बोला लाखपति क्या है, सब सोचिए पैसा का लाखपति। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझाए ये पैसा का लाखपति नहीं है, जो लाखों नाम लेता है 64 माला मिनिमम। तो गौरांग महाप्रभु स्टैंडर्ड वो रखे थे भक्तिनाथ ठाकुर, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य उनके प्रिंसिपल है। गौरांग महाप्रभु की विग्रह है, साथ में राधा कृष्ण की विग्रह है। प्रभुपाद जी ने तो अब सोचने लगे क्या करें, इनको उद्धार कैसे करूँगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने किसके बारे में सोचे, नित्यानंद अवधूत हैं, जिन्होंने काला कृष्णदास को भी उद्धार किया था। ये काला कृष्णदास की स्थिति जैसे था, स्त्री धन के लोभ में भाग गया, महाप्रभु को छोड़ के भाग गया। हमारा स्थिति ऐसा ही है प्रकृति में, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको आश्रय देकर इनको उद्धार किए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी फिर चिंतन किए, निताय नित्यानंद को लेके आए इस कण में, गौरांग के साथ निताय, जिसको अवधूत नित्यानंद आश्रय देते हैं, फिर गौरांग इसको टाल नहीं सकते हैं इसको। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर कहे कि कितनी माला, मिनिमम 16 राउंड, इससे लेस नहीं, ठीक ढंग से माला करना। तो इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक विप्लवी थे समाज में। उस समय समाज में इतनी बड़े विप्लव कोई सोचा भी नहीं था ऐसे करना है। और लेकिन जिस प्रकार उन्होंने प्रचार के प्रति भी जोर देते थे, इस प्रकार प्रचार इसके क्या भजन के प्रति भी जोर देते थे। भजन भी करते थे, लेकिन खाली भजन करना, लेकिन वो कहते थे कि
एक गौड़ीय मठ के सन्यासी मुझे कहे कि प्रकृति में भक्तिदास सरस्वती ठाकुर यह कहा करते थे कि यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो तुमको 64 माला जप करना, यदि तुम किताब वितरण में निकले हो, प्रचार में निकाल रहे हो, चार माला ही सफिशिएंट है, बस 16 माला करने, 4 भाग से 1 भाग माला करने से भी चलेगा। यदि तुम प्रचार करने में जा रहे हो आगे हैं, हम तो इस्कन में कम से कम प्रभुपाद ने हमको 16 राउंड कंपलसरी दिया है, हाँ, लेकिन इसी प्रकार वो प्रचार के ऊपर बहुत बल दिए। हम जो कहते प्रचार ही सार, ये किसके स्टेटमेंट, ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही सही ये शिक्षा प्रभुपाद ने लिए हैं, प्रचार ही सार, प्रचार भी करना चाहिए। और अपसिद्धांत को ये खंडन करता, जैसे आप सुने अभी एक महाराज ने कहे कहानी कि मेदिनीपुर में वैष्णव की सभा, ब्राह्मण बड़ा है या वैष्णव बड़ा, सभा चल रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ नहीं जा पाए, इनको गए भेजे, और वो बात तो आप सुने किस प्रकार प्रारंभ से ब्राह्मणों को बड़ा उठाए ऊपर, नमः ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, ब्राह्मण को इतने ऊपर उठाए, ब्राह्मण लोग कहेंगे बढ़िया आदमी है, सब ताली लगाने लगे। बात में कहेगी ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन है, सम दम तप शौच ख्याति आर्जव बच ज्ञान विज्ञान आस्तिकं ब्रह्म कर्म, फिर इसको व्याख्या किए ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन है। वैष्णव का स्थान फिर ब्राह्मण की परे, बोले जो वैष्णव होता है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होता है, तो फिर ब्राह्मण से चुप होकर फिर मुख नीचे करके बैठे हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे किसी के साथ, प्रिंसिपल में, फिलोसफी में प्रभुपाद जी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। जो प्रिंसिपल है, जो वैष्णव के सिद्धांत है, उसमें कभी भी साइड नहीं होते थे, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन भक्तों की एक बार एक गौड़ीय मठ ने 2 भक्त जाकर एक स्थान पर, एक गौड़ीय मठ का एक गांव में जाकर एक छोटा केंद्र खोला था, बहुत परिश्रम किए, प्रचार किए और मठ खुल गया। लेकिन बाद में वो लोगों ने मंदिर भी बनाया, लेकिन और भक्त लोग आस्ते आस्ते आए, मंदिर भी बन गया। लेकिन प्रारंभ से जो 2 ब्रह्मचारी वहाँ गए थे, वो लोग ने किसी कारण से, माया इतनी प्रबल है, वो गृहस्थ आश्रम में चले गए, तो उनको मंदिर से निकाल दिए, अपने गांव में गए थे। लेकिन जब मंदिर ओपनिंग हुआ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए उधर, पूछे वो दोनों कहाँ है, तो ब्रह्मचारी शुरू से जिन्होंने आए थे इधर, वो लोग कहे महाराज वो तो बहुत परिश्रम किए थे, ठीक है क्या मंदिर, लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा ही किया, फॉल डाउन हो गया। क्या हो गया? अब तो चले गए, गाँव चले गए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे नहीं, वो दोनों को जब तक लेके नहीं आओगे इधर, ये मंदिर ओपनिंग नहीं होगा। दोनों को फिर गए, जगह ढूंढ के उनके गांव से लेके आए वो, लेकिन इतनी भाव में विहोड़ हो गए कि प्रभुपाद जी ने हमको ढूंढा, हम गुरु महाराज हमको ढूंढे, हम चले गए थे, मैं फिर भी आकर, लेकिन दोनों प्रणाम किए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए, इनको आशीर्वाद दिए, फिर मेरे सेवा में लगा दिए, मंदिर का फिर पुजारी काम करो, मंदिर खुल गया, गृहस्थ मंदिर, ठीक है, यहाँ की यहाँ सेवा करो। लेकिन किसी भक्त को मंदिर से निकालना, प्रभुपाद जी भी नहीं निकालते थे। हमारे वृंदावन में एक भक्त, एक बार एक व्यक्ति 11 बार गया, फिर 12 बार आया, फिर 12th टाइम आया। दीनबंधु प्रभु कहते थे कहानी, तो मंदिर की अथॉरिटी इसको निकालते थे, बोले नहीं रहे, तब तो कमांडर सब मना कर, यहाँ नहीं रह सकते भागा। लेकिन वो जानता था कि प्रभुपाद जी को यदि मेरे सामने आ कैसी भी तरफ मिल लूँगा, चांस है। प्रभुपाद राधा दामोदर में गए थे, वो हमारा मेन गेट में पीपल पेड़ के पास बैठा था, जो वापस आ रहा था, नहीं वहाँ आ रहे थे, प्रभुपाद देखे कि बिल्डिंग पर तो ऐसे साइड में बैठ के, और प्रभुपाद देखा, पूरा प्रणाम किया और वो लिया। प्रभुपाद बोले क्या हुआ? कहे कि मुझे मंदिर से निकाल दिया। प्रभुपाद कहे कि आओ मेरे साथ आओ, लेके गए, रूम में बैठा, प्रभुपाद जी बैठे, कमांडर को बुलाया, आओ, तो क्या हुआ, उसको निकाला। बोले प्रभुपाद ये बहुत बदमाश है, 11 बार हो गया, 12th टाइम हुआ, किसी को नहीं सुनता, अथॉरिटी को इसको नहीं सुनता है, बहुत मैंने सब बोले मैं नहीं जानता। आप फिर मैनेजर को, फिर मैनेजर आ गए, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गए, फिर प्रेसिडेंट आ गए, सब आ गए, लेकिन सभी लोग कहे कि नहीं, इसको किसी हालत से नहीं रखना, ये जाना ही है। प्रभुपाद जी की आंख पर छल हो गया, देखे, कहे कि मैं मंदिर बनाया था किसके लिए? ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है क्या? ये एक हॉस्पिटल है बद्ध जीवों के लिए, और यहाँ पर वो क्योर नहीं हो पाएगा,
कहाँ क्यों इसको सुस्त कौन बनाएगा, हैं? कैसे ये ठीक होगा? फिर प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखे कि तू और क्रेजी नहीं बनोगे ना, मेरे ये इस्कॉन की संस्था दो व्यक्ति के लिए नहीं है, लेजी और क्रेजी। जो खा के सोएगा और क्रेजी किसकी मानेगा नहीं, अथॉरिटी किसी को फॉलो नहीं करेगा, ये दोनों व्यक्ति नहीं रह सकते इधर। लेकिन तुझे ये लास्ट चांस दे रहे हैं, तुम फॉलो करोगे ना? तुरंत बोला फॉलो करेगा, प्रणाम किया, तब से फिर बाद में बहुत अच्छे भक्त बन गया है और कभी बदमाशी नहीं किया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इतने दयालु है। इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हैं, किसी को कहते थे कि गैलन ऑफ ब्लड, एक भक्त बनाने के लिए हम कितनी खून नष्ट करके भी यदि एक भक्त बोले मेरा मिशन पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, यदि एक शुद्ध भक्त बनेगा हैं? तो ऐसे शुद्ध भक्त एक बने। इनके शिष्य में कौन? डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं। उनकी शिक्षा को ठीक से, चाहे वो पाश्चात्य जगत में कितने लोगों को भेजे थे सो प्रचार के लिए, उनके स्वप्न को सफल करने के लिए पाश्चात्य जगत में उन्होंने उनके शिष्यों को सब प्रचार के लिए, किसको इंग्लैंड में वन महाराज को भेजे, किसको जर्मन में भेजे, किसको फ्रांस, सभी जगह में सो फ्लाइट टिकट देकर बहुत पैसा खर्चा करके उनको भेजे, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन एक तो जो लंदन में भेजे थे उन्होंने वहाँ कहे कि देखो गुरु महाराज प्रभुपाद, यहाँ यदि आप कहोगे इधर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए नशा नहीं करना, जुआ छोटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करे, ये सब कहोगे, यहाँ कोई फॉलो करने वाले नहीं है, हैं? तो इंग्लैंड के जो भाई जो युवराज थे उन्होंने कहे कि आप मुझे ब्राह्मण बना सकते, आप सबको ब्राह्मण बनते हैं, हाँ आप भी ब्राह्मण बन सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये बोला कि इम्पॉसिबल, ये सब करने क्या फायदा, पर मनुष्य का जीवन तो यही है। तो इस स्थिति में कहाँ प्रचार होगा इधर? आप कृपा करके बोलिए कि हरे कृष्ण, वो सब जैसे रामकृष्ण मिशन वाले अन्य अलाउ करते हैं, ऐसे सब अलाउ करेंगे और साथ में हरे कृष्ण करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहे कि यू आर मैं तुम्हें इसके लिए भेजा था, वापस आओ। तो कुड़ांगार वापस आओ, कहे कि तेरे मुख नहीं देखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि वो जब वापस आए लंदन से आने के पहले ही नीतिलाय में प्रवेश कर गए थे। कौन? भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन अंतिम पत्र फिर दिए थे अपने शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी में, अभय बाबू के पास उसमें लास्ट लेटर लिखे थे, अभय मुझे विश्वास है तुम ये कार्य कर पाओगे, हैं? क्योंकि जो गौड़िया मठ में सभी लोग सजेशन दे रहे थे कि ये अभय बाबू को कुछ मैनेजमेंट में दो, हैं? बहुत अच्छे, इनको मैनेजमेंट कुछ प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, कुछ मैनेजमेंट। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर देखते थे, कहते समय आने पर वो अकेला ही सब करेगा, उसके बारे में तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जानते थे वो ज्योतिर्विद है बहुत, देख कर, क्योंकि जब पढ़ते थे इस कॉलेज में उस समय उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जिसको जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़े प्रशंसित होकर आए थे पत्र। भविष्य जब पढ़ते थे तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिए थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, वो इतनी टैलेंटेड थे और उन्हें जाते थे कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में क्लास देने जाते थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को एस्ट्रोनॉमी का क्लास देने जाते थे, पढ़ते थे, इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे पोस्ट। तो लेकिन इस स्थिति में भी इन्होंने अपने पिताजी की एक पढ़ा भजन को, जो लिखते थे भक्तिविनोद ठाकुर, इसको पढ़ते थे, एक भजन पढ़ा है, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव को कराए गाधा। कौन लिखा? भक्तिविनोद ठाकुर। क्योंकि भौतिक विद्या जो है, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये कैसा है? जड़ विद्या है, ये माया का ही संपत्ति है। जड़ विद्या जब तक मायारा वैभव तुम्हारा भजने बाधा, भजन में ही बाधा आता है। क्योंकि पढ़ के सब व्यक्ति फिर घमंड आता है बड़ा, फिर वो कहते क्या है, ये फिर ये बहुत भजन करने के लिए थोड़ा संकोच करता है, बड़ा बड़ा डिग्री ले, फिर वो बड़ा घमंड आता ना, जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर यदमान मदह पुमान। भक्तिविनोद ठाकुर की ये सब बाधा है, तुम्हारा भजन है बाधा। ये विद्या लेकर लोग क्या करते हैं? गधा के समान परिश्रम केवल करते रहते हैं, आपकी भजन नहीं करते हैं। हाँ जी, तो इसको जो पढ़े भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, यंग थे, दूसरा दिन कॉलेज जाना बंद कर दिए। इतना टैलेंटेड था, उनके प्रोफेसर लोग आए, सब आए, बोले कि अरे क्या कर रहे हो, बिमला प्रसाद क्यों नहीं आ रहे हो, आओ आओ।
सब लोग आगे बढ़े, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, भी जा भी नहीं रहे थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कभी एक दिन इनको नहीं बोला, ये इतनी स्थिति होने पर भी सारे देख रहे थे, लेकिन बोले नहीं कॉलेज में जाने के लिए, वो भी नहीं बोलते थे हैं कि वो लेखे ना स्वयं जो अनित्य संसारे मोह जन्मैया जीव को कराए गधा। ये भौतिक विद्या केवल शुक्राचार्य की इसका एजुकेशन है, शुक्राचार्य संध्या मर्क का है। इसको पढ़ के सब तो फिर भौतिकवादी बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। यानी कि कोई परीक्षा फेल होगी ना, नहीं, सबसे टॉप फर्स्ट क्लास फास्ट टॉपर होते थे और उर्दू क्लास में जाके पढ़ाते थे। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके पढ़ाते थे नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाई छोड़ दिए। छोड़ के फिर भक्ति विनोद ठाकुर की किताबों को सब पढ़ने लगे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखते थे उनको सब पढ़ते थे, पढ़ के फिर इनको जीवन में उतारते थे हैं। इसलिए भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर इसी प्रकार एक आदर्श हम सभी के लिए निभाया है। मैं कहता था कि जैसे मैं धोती कुर्ता भी कोई नहीं पहनता था, इन्होंने बोला प्रचार के लिए ये कुर्ता पहनना जरूरी है। जब आप जाओगे किसी वीआईपी को मिलने के लिए बड़े बड़े, तो आपको ऐसे भिखारी की तरफ जाओगे तो कौन सुनेगा हैं। लेकिन तुम यदि अच्छे से ड्रेसिंग पहन के जाओगे प्रचारक को, इसलिए प्रभुपाद जी भी कहा करते दो व्यक्ति को अच्छा ड्रेस पहनना, कौन, जो प्रचारक है किसी वीआईपी को मिलने जा रहा है, और पुजारी मंदिर की जब पूजा करते हैं, चाहे वो अपने रूम में एक अलग ड्रेस पहने, लेकिन जो अल्टर में आएगा इसको अच्छे ड्रेस पहन के आना चाहिए। पब्लिक के सामने है इसको सिल्क पहन के आना चाहिए, पूरा जो आरती करता है भगवान की उस समय। लेकिन सब समय नहीं घूमना, अन्य समय पर। लेकिन और जो प्रचारक जो जाता किसी वीआईपी को मिलने के लिए, प्रचार करने के लिए, इनको अच्छे ड्रेस पहनना है। ये कुर्ता पहनना, ये सब कोट पहनना, ये सब जो ये सब सिखाए भक्ति विनोद ठाकुर ने, ये सब आज तो सब पहन रहे हैं। चाहे कहते बोला कोई बाबा जी है, लेकिन फिर जब दिल्ली जाएंगे तो वो पहनेंगे किसको मिलने के लिए वह कुछ है। लेकिन ये इसलिए हम जानना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हम कैसे ऋणी है। ये ऋण चुकाना संभव नहीं है, उन्हीं की ही आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से ही हम आप बैठे हुए। इन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया पश्चात जगत में जाकर प्रचार करना है। यदि वो भक्ति विनोद ठाकुर इनको आदेश नहीं देते थे और कुछ आदेश देते, फिर यदि प्रभुपाद न हईत तबे की हईत केमन धरिताम दे। गौरांग महाप्रभु कहते कि यदि गौरांग यदि गौर ना हईत तबे की हईत केमन धरिताम दे। लेकिन हम जानते प्रभुपाद नहीं होते था। प्रभुपाद जी को जो प्रचार के लिए आदेश कौन दिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जिस आदेश को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतनी कष्ट उठाए, पश्चात जगत में भ्रमण किए, प्रचार किए, तो इसी कारण से हम यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए हमारे जो संप्रदाय विशेष रूप में हम श्रील प्रभुपाद तथा उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा को ही हम पालन करते हैं विशेष रूप में। प्रचार कर आगे, नहीं तो सब पहले भजनानंद से भजन करते थे। यदि गोष्ठ्यानंदी प्रिंसिपल को रूप गोस्वामी अपनी रचना में दिए हैं, लेकिन इसको कार्यकारी प्रैक्टिकल कार्य में लाना, ये डिवाइन भक्ति विनोद ठाकुर अपने रचना के माध्यम केवल लिखे, लेकिन ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले थे कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये रे ऑफ विष्णु, ये साधारण के व्यक्ति नहीं थे, भगवान विष्णु की उसी आध्यात्मिक जगत से ही पधारे थे ये धरा पर। तो लेकिन ये सहजियाओं को कभी साफ, ये नहीं कि वो बाबा जी सॉरी बाबा जी को ऐसे ही डांटते थे, कुछ फटकराते थे, नहीं। जो क्वालिफाइड है, जो प्रकृत में परमहंस, बाबा जी का अर्थ परमहंस। बाबा जी जो ड्रेस पहनते हैं, आंठों तक कपड़ा, और ऐसे ही बढ़ना और दिन रात भजन करना, ये परमहंस का काम है। लेकिन सच्चे परमहंस जो थे, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज या बंशीदास बाबा जी महाराज, इनको बहुत सम्मान करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बंशीदास बाबा जी महाराज के झूठन खाने के लिए गौड़िया मठ में 2 ब्रह्मचारी को सदा उनके पास रखते थे, क्योंकि वो दिन रात भजन करते थे। खाते नहीं वैसे ही, दूसरे के ही नहीं खाते, वो खुद ही कुकिंग करके अपने गोपाल को थोड़ा भोग लगाएंगे, जिसने खाए। फिर कभी नहीं, कभी 3-4 दिन में, 7 दिन में कभी एक बार थोड़ा खिचड़ी स्वयं बनाएंगे हैं। जब खाते हैं वो, खाने के बाद उनके उच्चिष्ट जो रहता था उसको फिर वो पैकिंग करके लेके आते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। इसीलिए वो रखते थे ब्रह्मचर्य वहाँ। चाहे 10 दिन 15 दिन कभी सड़ जाता था, लेकिन इसको बड़े आग्रह के साथ खाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। यानी कि सारे बाबा जियों को निंदा कर, ऐसा नहीं। लेकिन जो योग्य है वो जानते थे कौन सहजिया है और कौन सच्चे बाबा जी है, परमहंस है।
जो सच्चे परमहंस उनको बहुत सम्मान करते थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए इनको भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे, जब इनके देखे कि ये आध्यात्मिक पढ़ाई छोड़ के अभी पूरा भक्ति में आना चाहते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जाओ ये इनसे ही दीक्षा लेना। किससे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, जो कि साक्षात वैराग्य मूर्त है। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्त है। विप्रलंबर सांभोधि पदाम्भोजायते नमः। खाते नहीं, वो भी ऐसे ही वैरागी थे हैं। माधुकर लाते थे कभी तो उनको भजन का टाइम नहीं है, ऐसे कपड़े में बांध के गंगा में डाल देते थे, रात भर भीग जाता था, तो चावल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था, नमक डाल के बस वही महाप्रभु को अर्पण करके बस खा लेते, गंगा में खड़ा होकर बस हो गया भोजन। दिन रात नाम लेते थे। कभी बाई चांस कुकिंग करें, स्मशान में जाते थे, स्मशान में जाकर स्मशान में जो पड़ा जो पात्र जो फेंक देते हैं सब के साथ फेंकते, तो उस पात्र को उठा के लगे गंगा में पानी में धो लेते थे, गंगा पानी भर के उसी में चावल डाल के वही जो मरा हुआ लकड़ी जो जला हुआ सबका जो बचा हुआ लकड़ी उसी को लाकर कुकिंग कर लेते, स्मशान में ही कुकिंग करके भगवान को अर्पण करते थे, बस खा लेते हैं। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते वो जो कुकिंग है आप उसकी सुगंध से जान सकते कि कृष्ण स्वयं खाए हैं। भाई शुद्ध भक्त कुकिंग करता है। लेकिन ऐसे बैरागी वो किसी के शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आकर वो क्या करते थे, सुनते थे भागवत। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किसी से दूसरे बाबाजियों से दूसरे संत से नहीं मिलते थे, जाते नहीं थे किसी के पास, अपने भजन में करते थे। अब डेली आते थे भागवत सुनने के लिए। किससे? हैं? भक्ति विनोद ठाकुर पास में बड़े सावधानी से आके बैठकर भागवत सुनते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे ये भी परमहंस है। तो आपने वो पुत्र को कहे कि जाओ इनसे ही दीक्षा लेना है। और ये दीक्षा के लिए गौर किशोरदास जी पास में पहुँचे, प्रणाम किए, कहे कि पिताजी ने कहे कि आदेश दिया आपसे दीक्षा माला मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। पहला दिन कहे कि नहीं, महाप्रभु ने पहले मैं महाप्रभु को पूछूंगा फर्स्ट दिन। दूसरा दिन जब गए कहीं भूल गया, पूछने भूल गया। तीसरे दिन में फिर गए, प्रणाम किए, बहुत धन्यता से प्रार्थना किए, तो कहे कि एक्चुअली महाप्रभु ने कहे कि ये सब जड़ विद्या पड़ेगी जो बड़ा बड़ा डिग्री बहुत हैं उनको होते हुए सब घमंडी होते हैं, ये क्या ये कृष्ण भक्ति करने की योग्य। तो कहे कि आप तो कपट शिरोमणि के फॉलो करते हो हैं और वो कृष्ण को, तो इसलिए आप भी कपटता आचरण करते हो। लेकिन मेरे सिद्धांत भी समझ लो, जब तक मैं आपसे दीक्षा नहीं लूँगा तब तक घर में वापस नहीं जाऊँगा। यदि जरूरत पड़ेगा तो अब एक कूद जाऊँगा, कहाँ? गंगा में। कहते कि गंगा में कूद के शरीर त्याग दूंगा, हैं दीक्षा नहीं देने से। आप यदि मेरे पिताजी कहे कि आपसे दीक्षा नहीं लेने से मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, तो बाध्य होकर फिर वो की शिष्य बनाए। कौन? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। एक ही इनको दीक्षा दिए। नाम क्या दिए? श्री वार्षभानवी देवी द्वैत दास। वार्षभानवी देवी कौन है? वृषभानु की पुत्री राधा जी, क्योंकि राधा रानी के दासियों की दासी हैं। इनकी नित्य स्वरूप को जानते हुए ऐसे नाम दिए। और तभी एक ही शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज स्वीकार किए थे। कोई के कहते थे कि भक्ति, अरे आप तो आपके गुरु को तो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप गुरु तो इतने बड़े भजनानंदी है और आप ऐसे गोष्ठानंदी कहाँ से बन गए हो? आपके गुरु आपको कहा है बिमला प्रसाद कभी कलकत्ता नहीं जाना, और तुम कलकत्ता में जाके मैं इतना बड़ा क्या कर दिया, हेड ऑफिस बना के वहीं से प्रसाद लगाना शुरू कर दिया है। तो भक्ति विनोद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि भारग्राही मत बनो। क्या बनना? सारग्राही। गुरु की आदेश को, एसेंस किया, इसको स्वीकार करो। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहे कि कलकत्ता नहीं जाना, इसका अर्थ माया में नहीं जाना। ये नहीं कि प्रीचिंग नहीं करना, कभी नहीं कहे थे। मेरे गुरु को भी नहीं कहा कि प्रचार नहीं करना। रूप गोस्वामी की फलवार है। तो इसलिए हैं भक्ति ठाकुर कोई कहता था कि वो इतनी भजन करते थे, आप इतनी प्रचार, आपके मैंने आप तो वो भजन इतने बोलते कि देखो मेरे गुरु महाराज के बारे में चर्चा नहीं करना। हैं बोट में बैठे थे उस वक्त, तो कहे कि देखो ये बोट जो चल रहा है कैसे चल रहा है, इसमें इंजन लगा हुआ है। हैं इंजन इसको खींच के ले रहा है। तो उसी प्रकार मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये सारा शक्ति कहाँ से आ रहा है? परंपरा से आ रहा है, मेरे गुरु महाराज से कनेक्टेड हूँ। एक टॉर्च नहीं जल सकता, उसमें सेल नहीं होगा तो ये जलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार कभी भी आपने, यदि वे महान गोष्ठानंदी थे, लेकिन आपने गुरु हैं अंगूठा लगाने चप्पल लगाने वाले गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बहुत बुरी बुरी प्रशंसा सदा करते थे। जो कुछ कर रहा हूँ उन्हीं की कृपा से। मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, दीक्षा गुरु
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते, देखो मेरे अनुभव है, कभी किसी विशेष समस्या का समाधान मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ, उत्तर मुझे नहीं मिलता, मैं गुरु महाराज के पास जाता, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। इनको प्रणाम करके जब जिज्ञासा करता हूँ, मुझे पता नहीं लगता, उनके मुख से वेदों के श्लोक, उपनिषद के श्लोक, पुराण कितने सारे अपने आप स्वतःस्फूर्त निश्रुत होते थे, क्योंकि इनके मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान सब देते हैं। जो सेवा परायण रहता है, सर्वदा भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है, संपूर्ण शरणागत रहता है, इसको बुद्धि कौन देता है? ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम उपयांति ते, मुझे कैसे प्राप्त करेगा वो बुद्धि मैं अंतःकरण में उसको देता हूँ। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु की पूरा फॉलोअर थे, उनके सब तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते थे कि अभय बाबू हैं, नहीं सरी, इनको कभी ऐसे नहीं बोलते, इनको इनको कभी ऐसे ही कहते कि हमारे जो प्रभु है, इनको जो संबोधित करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संबोधित करते थे, प्रभु हैं कहते थे, ये हमारे प्रभु, हमारा प्रभु के प्रति हमारे महाप्रभु बहुत प्रसन्न है कहा करते थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जब नित्यालय में प्रवेश किए, इन नवदीप बाबा जी ने, उनके बाबा जी लोग सभी उनके शरीर के लिए उनके सोचते थे कि इनके समाधि हमारी आश्रम में बनाएंगे, क्योंकि जानते थे कि सिद्ध बाबा के रूप में इनकी ख्याति था नवद्वीप में तथा वृंदावन में, राधा कुंड में पहले निवास करते थे। सभी जानते थे कि एक महान सिद्ध संत महात्मा है, और इनकी जहाँ पर समाधि बनेगा वहाँ पर बहुत लोग आएंगे, और क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगा इधर। सभी लोग, सभी बाबा जी लोग सोचते थे कि उनके शरीर को लेकर दक्षिण मैंने अपने आश्रम में समाधि देने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, कहे कि मेरे गुरु महाराज के मैं एकमात्र ही शिष्य हूँ, तुम लोग उनके शिष्य नहीं है। बाबा जी बोले, तू कौन सा शिष्य है? तो बाबा जी दीक्षा नहीं लिया, उनसे बैरागी भेज तो नहीं लिया, ऐसा शिष्य कैसा बन गया? वो हम बैरागी है, वो बैरागी परमहंस का बड़ी का हम सत्कार करेंगे, हम भी परमहंस। तुम काल का कहाँ से धूड़ी फेंक दिया तुम्हारी पर, थोड़ा तो हो गया ऐसा ही, तुम नहीं ले सकते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अच्छा आप लोग सो परमहंस हो, हैं? परमहंस तो ठीक है, सही बात है, मैं तो न्यूफाइट हूँ, लेकिन मैं माता गंगा और गौरांग महाप्रभु को साक्षी रखकर आप लोग को ये वादा देता हूँ, या प्रतिज्ञा, कि आप लोग यदि कोई परमहंस हो, 1 साल के अंदर कोई अवैध चिंतन नहीं किए हो, अवैध स्त्री संग के, केवल दैहिक स्तर पर नहीं मानसिक स्तर पर भी यदि आपको कोई स्त्री संग की इच्छा नहीं हुई है, मेरे परमहंस गुरुदेव के शरीर को आप उठा के यहाँ से ले सकते हो। बाबा जी लोग सब एक दूसरे को देखने लगे, हैं? कोई आगे नहीं बढ़ा। तो कहे कि अच्छा 6 महीना के अंदर में भी यदि कोई अवैध संग से मुक्त होता, आके लेके जाओ, उठा के लेके जाओ। कोई नहीं आया। 3 महीने, 1 महीना, 15 days, 1 week, 3 days, लास्ट नाइट, बाबा जी लोग देखते रह गए। उठाया स्वयं अपने गुरुदेव के शरीर को उठा के लेके चले गए। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसे विप्लव, ऐसे तेजस्वी हैं, इसलिए उनको नृसिंह गुरु कहते हैं। आज भी बाबा लोग कोई देखते हैं तो उनको चिढ़ते हैं, आप जाओ कहीं तो उनका नाम सुनने ही चिढ़ते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, सहजियां को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि उनको प्रसन्न करना है, तो आज उनके, तो हमें भी हमारे साधन भक्ति को ठीक रखना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हुए माला जपना चाहिए, 16 माला जैसे प्रभुपाद ने हमको दिए हैं, और साथ साथ क्या करना चाहिए? प्रचार, हैं? प्रचार ही सार, प्रचार भी करना चाहिए। प्रचार नहीं करने से भक्तियान सरस्वती ठाकुर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते थे, हैं? कर सकते। भक्तियान गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य, लेकिन एक चंद्रमा के समान है, पूर्ण चंद्रमा के समान, ये अकेले ही पूरा उनकी कीर्ति को सारा जगत में फैला दिया। आज भी हम परंपरा में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को रखते हैं। किसी रखते कि उन्होंने, किसकी गुरु महाराज है? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्पिरिचुअल मास्टर है, इसलिए उनको हम परंपरा में रखते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा ही शिष्य बनना चाहिए, हैं? जैसे उन्होंने शिष्य बना गुरु की बपू तथा वाणी, विशेष रूप में वाणी, प्रभुपाद जी ने वाणी को फॉलो किया, इनकी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी को अक्षर अक्षर उतारे पाश्चात्य जगत में, अंग्रेजी भाषा में,
गीता भागवत की, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने की जो संदेश है उनको जीवन में उतारे। कौन? श्रील प्रभुपाद। हमें भी उसी मार्ग में जाते हुए प्रयास करना चाहिए। गुरु से भी शिष्य बनना है। गुरु भोगी, गुरु न गुरु त्यागी, गुरु भोगी, गुरु से भी। कौन सा कैटेगरी के शिष्य? गुरु से भी। गुरु से भी शिष्य, जैसे प्रभुपाद जी ने भी गुरु सेवा की है, भक्ति सिद्धों ठाकुर ने भी गुरु से परंपरा है, गुरु सेवा करना है, वैष्णव सेवा। गुरु से भी शिष्य बनना है। इसलिए भक्ति सिद्धों ठाकुर वो कहते थे कि बलम राइस और क्या बासमती राइस और गोवा घी खाने के लिए से हैं, क्योंकि हम गुरु के घर में रहकर गुरु की संपत्ति को खा के इंद्रिय तृप्ति में लगाने के लिए जो करते तो गुरु भोगी है। प्रभुपाद जी ने हमें दिया ये संपत्ति, सब इसकन दिए हैं, ये सब संपत्ति प्रभुपाद जी का है। लेकिन हमें इसमें रहकर यदि हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करेंगे तो क्या होगा? हम गुरु भोगी बनेंगे। भक्ति सिद्धों ठाकुर ने ही कहानी कहे कि एक सेठ जी था, उसके पास कोई नौकर नहीं रहते थे, क्योंकि बड़ा कंजूस था, ऐसा ही खाता था जो झूठा रह जाता था। लेकिन उसका प्रेस्टीज भी चाहिए कि सेठ जी है, करोड़पति लोग हंसते, देखो करोड़पति घर में एक नौकर नहीं रखता है, हैं? तो इसलिए एक बार वो सोचा कि एक नौकर रखा। अपने मित्र को सलाह लिया कि देखो कैसे मैं इसको रख पाऊंगा। तो बोला कि देखो तुम इसको डेली बासमती चावल लेके आना। कहाँ से? मार्केट से। 1 क्लास के चावल हैं, चावल ला के कुकिंग करना, उसके ऊपर गाय के घी, प्योर गाय का घी डालना, उसके ऊपर पनीर सब्जी इसको खिलाओ। बासमती चावल, गाय के घी, पनीर का सब्जी डेली खिलाओ, देखो जाएगा नहीं। इस काम को मत पढ़ो, सेवा के लिए कुछ मत बोलो उसको। लेकिन 1 महीना जाएगा, फिर 1 घंटा सेवा देना, दूसरे महीने में 2 घंटा, तीसरे महीने में, ऐसे 12 महीना जब हो जाएगा, 1 साल के अंत में 12 घंटा सेवा में लगा देना। लेकिन वो बीच में जो कहेगा मैं नहीं करूँगा, इतना नहीं करूँगा, चले जाऊँगा, भाग जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, धमकी देता रहेगा, तो कुछ बोलना नहीं उसको, चले भी जाएगा, देखना फिर वापस आएगा। हैं? तो भक्ति सिद्धों ठाकुर कहते थे कि ऐसा ही कोई हमारा इस्कन में आता है, बस रहता, बस खाता पीता रहता, कोई सेवा ज़्यादा हो जाता है मैं छोड़ के चले जाऊँगा, लेकिन जाके फिर बाहर में घूमता है। बाहर में घूमेगा तो उसी से देखिए घुमा, घूमते घूमते वो मिला नहीं क्या, कहीं भी बाहर में और बासमती चावल, गाय का घी और पनीर का सब्जी नहीं मिल रहा है। हाँ, देखा शरीर पतला हो गया है, रुगना हो गया, काला पड़ गया, तो फिर वापस आता है। ऐसे 1 साल घूम के इधर उधर घूम घाम के फिर आता है, आगे बोलता है कि गुरुदेव आपके नहीं सर सेठ जी आपके चरण में बड़ा ममता हो गया मेरा, मैं कभी भूल नहीं पा रहा हूँ आपके चरण कमल, जहाँ जाता हूँ आपके चरण कमल मुखारा बिंदु मुझे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ता है उसको? बस अब क्या करें, हम कहीं भी जा रहा है ये सब आपके चरण कमल देख लें, इसलिए कृपा करके मुझे चरण में आश्रय दीजिए। तो इसे समझाते थे कि गुरु भोगी शिष्य होते हैं, हमें गुरु भोगी नहीं बनना, गुरु से भी बनना। आदर्श भक्ति सिद्धों ठाकुर ने निभाया, श्रील प्रभुपाद जी ने भी निभाए। कैसे आदर्श शिष्य बनना है, कितने संघर्ष किए गुरु आदेश को पालन करने के लिए। घर बार छोड़ के प्रभुपाद जी ने आए, आकर राधा दामोदर में कैसे संघर्ष किए हैं। कल सुन रहे थे वो ड्रामा वहाँ देखा रहे थे, प्रभुपाद जी जो गीत गा रहे थे, प्रभु मुझे कहाँ वो आप लेके आया है, अभी मेरा सब कुछ है, मेरे घर है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ग्रांड पर्सन सब है, लेकिन अभी मेरे पास में धन नहीं है, तो मुझे कोई भी नहीं पूछता है। मैं अकेले इधर बैठा हूँ आपके चरण में, लेकिन आपने मुझे माया का नग्न रूप दिखाया। जदहंग अनुगुणामी हरिष्य धनंग सनई, प्रभुपाद जी पद लिखते हैं। ऐसे कहकर प्रभुपाद ने कभी दुखी नहीं हुए, प्रभुपाद सब समय हंसते थे ऐसे होकर सब समय सुखी रहते थे। भगवान जानते थे कि सब भगवान नहीं कर रहे, कुछ इसका पीछे विशेष उद्देश्य है। इस प्रकार प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं था उन दिनों में, देखा था चटाई और कंबल के साथ रहते थे राधा दामोदर में, क्योंकि निष्ठा के साथ गुरु आदेश को पालन करते रहे, गुरु को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे थे, तो सफलता हो गए हैं, सफल हो गए। और किस प्रकार से जानते कैसे वो गए अमेरिका में, कैसे गए कार्गो शिप में, ये सारे किए किस लिए? किसी के आदेश को केवल पालन करने के लिए। किसके आदेश? अपने गुरुदेव डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को पालन करने के लिए। जब भी कोई प्रभुपाद जी कोई प्रशंसा करता था, आप ऐसे सब कैसे किए हैं? 40 रुपया लेकर कार्गो शिप में जाकर इतनी बड़ी की संस्था की स्थापना कर दी, ये सब कैसे हो गया?
प्रभुपा आप महान हो, ऐसे प्रभुपा जी को यदि कोई प्रशंसा करता, प्रशंसा को प्रभुपा नहीं लेते थे। क्या करते थे? ये सब मेरा गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। मेरे गुरु महाराज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गौरांग महाप्रभु की कृपा से शुभ संभव हुआ। इसी प्रकार आज के विशेष पावन दिन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव तिथि है, उनकी व्यास पूजा तिथि है। हम भी ऐसे ही संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर न करिह मने आशा। बहुत कुछ प्रश्न बोला जा सकता है, लेकिन समय भी दिया गया था। 9:30 बजे बोलते थे, अभी तो 10 बजने वाला हो गया। मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। 10 बजे तक कोई किसके प्रश्न है तो 1-2 पूछ सकते हैं। 10 बजे कंप्लीट कर दें क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। महाराज जी, जैसा कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरित्र में देखते हैं कि किस प्रकार वो एक स्टोन्स ब्रह्मचारी थे और उसके नाम से जाने जाते हैं हर जगह, तो हम कैसे अपनी लाइफ में एक ऐसे ही अच्छे सुदृढ़ ब्रह्मचारी रह सकते हैं आज? हम कैसे, जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जीवन में एक दृढ़ ब्रह्मचारी थे, स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी थे, तो हम कैसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं? कैसे हम भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं पूरी लाइफ? कैसे रहोगे? उनके मार्ग को अनुसरण करो। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। ब्रह्मचारी कैसे रहो? ब्रह्मचारी के नियम फॉलो करो। पहले क्लास, पिछले क्लास में पूरा ब्रह्मचारी का क्लास था, ब्रह्मचारी क्लास पूरा दिया गया था। सब बच्चों से माया के प्रभाव से बचने के लिए प्रयास करोगे तो बनोगे। गुरु आदेश को पालन करो। सोचो, आप यदि सोचोगे कि नहीं मेरी गुरु प्रसन्न होता है, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा तो गुरु महाराज प्रसन्न रहेंगे, लेकिन ब्रह्मचारी बनना है कि केवल जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य होता है गुरु आदेश से भगवान को प्रसन्न करने की सेवा में लगे रहना। आप इतनी सेवा करते रहो, माया के चिंतन करने का वो टाइम जैसे न मिले। ये मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसको सब ऐसे आलसी व्यक्ति ही बन जाता है। यदि वो सदा सेवा में तत्पर रहेगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा कुछ चिंतन करने का, टाइम नहीं देने का। इसलिए हम रजोगुण के प्रभाव से रहते मनुष्य शरीर तक, इसलिए ज़्यादा प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन भेज देता, 8 घंटा जाओ बांटो। ऐसे तो फिजिकल काम करोगे प्रभु कृष्ण के लिए तो फिर रात को आओगे, प्रसाद खाया, फिर और चिंतन करने की टाइम ही नहीं रहेगा। क्या हो गया? नींद आ गया, सो जाओ, बस गया। ये माइंड को यदि समय दोगे फिर वो चिंतन करेगा इधर उधर, आपको ले गाढ़ा में डालेगा। फिर वो अपोजिट से इधर उधर चिंतन करेगा, तब कुछ टाइम नहीं देना है इसको। इतनी एंगेजमेंट देना है, वो टाइम, उसको समय नहीं मिलेगा। इसको कभी समय नहीं देना। प्रभुपाद जी के आदेश को ठीक से पालन करो। जो समय मिला हरे कृष्ण मंत्र जपना, 16वां, फिर किताबों को 2 घंटा पढ़ना, ये सब में पूरा एंगेज है। यदि कोई प्रभुपाद किताब को नियमित पढ़ता है वो माया में नहीं जाएगा। ज्ञान संचिन्न संशयम, जो ज्ञान होता है, हमारे अज्ञानते कारण माया में जाते हैं। किताब को पढ़ना और सेवा में सदा लगा रहना। टाइम ही नहीं देना, एम्प्टी नहीं रखना। 24 घंटा कुछ काजुअल बने देना। कैसे इसको कैसे इसको उपयोग करना कृष्ण की सेवा में, काजुअल बना के स्ट्रिक्टली फॉलो करना। भक्ति विनोद ठाकुर करते थे, पूरे 24 घंटा को रूटीन बना के इसको जीवन में उपयोग करते थे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? माइक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी मंदिर में कीर्तन भजन होगा और इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का पुष्पांजलि मंदिर में होगा 12:20 को, 12:20 में 12:20 को पुष्पांजलि होगा। उसके बाद कीर्तन मंदिर में और 1 बजे लंच प्रसाद। अभी हम लोग उपवास करने वाला है, कर रहे हैं ना, मालूम है ना? उपवास, आधा दिन उपवास है, क्योंकि हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के लिए आयुर्वाद तिथि है, इसके लिए उपवास कर रहे हैं। और शाम का प्रोग्राम होगा पंडाल में। जो डिवोटी लोग, कांग्रेगेशनल डिवोटी लोग
जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग बना है, अपना अपना घर पे बना के रखा होगा। वो 3 बजे का अभी से पहुंचा सकता है पंडाल में, 3 बजे का अंदर पहुंचाने का है। 56 भोग का भोग बनाया लॉर्ड जगन्नाथ को, 3 बजे तक पहुंचा दीजिए और 4:30 बजे 56 भोग दर्शन होगा। शाम को प्रोग्राम पूरा पंडाल में होगा। प्रसाद 1 बजे होने के बाद सब लोग पंडाल में पहुंच जाइए 4 बजे तक। 4:30 बजे 56 भोग दर्शन होगा और 5 बजे कीर्तन भजन होगा और 6 बजे भक्ति दीपा बच्चे लोग और वैष्णव संघ का ड्रामा होगा जगन्नाथ अष्टकम, वो 6 बजे। और 6:30 बजे संध्या आरती होगा और 6:45 बजे 6:45 PM यह ड्रामा बाय IYF इस्कॉन यूथ फोरम का ड्रामा होगा द्रौपदी, दैट इज 6:45। और 7:30 onwards there will be lectures, pravachan in the pandal, and 8:30 PM there will be rock, Madhavas rock band, जो कल भी एक रॉकिंग था। और फाइनल concluding program of the Hare Krishna festival is rocking Madhavas rock band. So that is today's program. So I request all the devotees to participate in the evening program. All of you please be there in the pandal. शाम को 4 बजे से लेकर के सब लोग पंडाल में सभी प्रोग्राम में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। The Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki, The Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।